Good morning, everyone. A very warm welcome to all. On the second day of our induction program for our first year journalism and mass communication students here at Tilak Maharashtra Vidyapith. I hope yesterday's session have already sparked your excitement for the journey ahead. And the day we are to continue with same enthusiasm and energy. It gives me immense pleasure to welcome esteemed member of our academic family, respected Dr. Dheeraj Singh sir, and our guest Dr. Milind Damble sir. May I now request Dr. Dheeraj Singh sir to kindly address the student and share his word of guidance. Storytelling. Actually, very good morning to all of you. My background from engineering department, so I don't have so much knowledge in journalism, but I can tell you something regarding the power of AI, so artificial intelligence. So basically nowadays that is an era of digital era, 21st century of artificial intelligence. So I think as a student or as a faculty members, we must understand that what is the use of AI in our field, because today if you will see the different sectors, the maximum sectors are adopting artificial intelligence and the tools which are emerging tools like in teaching field, agriculture field. So maximum sectors are adopting such type of tools. So in journalism, I don't know that how we can use these tools like AI and automation tools. But I want to tell you something which is very interesting. In next 5 years, probably by 2030, the maximum things will be controlled by the AI, right? The artificial intelligence will take the charge. They will take the charge over the human, and they will act as we do. Means as human does that, they will do same thing. But sometimes the question comes, what type of job? That means maximum jobs will be eliminated, will be killed by the artificial intelligence, right? So that is my experience. When I start my career, start in automation. So sometimes the students get confused what is the difference between automation and AI. So I will tell you the very good example. In automation, some human interaction is required, like ATM machines, refrigerators. In that case, you interact with machines and they just do the repetitive task. But the artificial intelligence are the systems which does not require any human interactions. They will take the decisions as we do. Right? That's why they are all intelligent systems. So basically, as a student, we have to prepare, you have to upgrade yourself with the technology of artificial intelligence. Means in journalism field, in next 3 years, the sir is expert in this case in journalism, means you have to cope up with technologies. The technologies is very threatable technology, which is AI. हमें लगता है कि technology हमेशा opportunity लेके आती है, no doubt. It always come with the two aspects. One is technology is threat and opportunity. Opportunity is productivity will be high, manpower will be reduced, and we will be smart, our life will be smart. But on the other hand, artificial intelligence is going to kill your job. That's true. That we can't cancel it. हम इसे खारिज नहीं कर सकते, हम इसके नहीं हट सकते. तो हमारे पास दो ही चॉइस हैं, do and die. Means you have to upgrade yourself. You have to learn that how to use artificial intelligence and how you can utilize what is the use of AI in journalism. So you have to prepare yourself, whatever you are students of first year, second year and third year. So as an engineer, I want to tell you something that is the great threat for every country, means every globally that has been threatened point where we are standing at the edge of threaten. जहाँ पे जॉब कब जाएगी किसी को नहीं मालूम है. आज आप देखो आईटी में हर दिन 30,000 लोगों को बाहर निकाला जा रहा है बिकॉज दे आर नॉट अपग्रेडेड, दे डोंट नो हाउ टू यूज artificial intelligence. So please, I request you and please upgrade yourself, and whatever you learn in journalism, this is your core subject, but allied means parallelly you have to upgrade, you have to train yourself in AI, artificial intelligence. Thank you so much. Thank you so much for giving this opportunity. I was not prepared for that, but whatever I have learned during these 20 years, my teaching and industrial experience, I tell you the great opportunity, no doubt artificial intelligence will give you the great opportunity, but as well as there is a threat as well. Thank you so much. Thanks. Okay.
Thank you, sir, for your inspiring word and also the importance of the AI, how you can use it and how you the threat of the AI in every job field. So now we move to very special part of today's program, the guest lecture. We are honored to have with us our Dr. Milind Damble, celebrated media professional, academic and filmmaker, who will be speaking on the power of storytelling in digital media. Before we begin, may I request to Dr. Dheeraj Singh sir kindly felicitate Dr. Milind Damble as a token of our respect and gratitude. Thank you so much, sir. Now let me take a moment to introduce our distinguished guest. Dr. Milind Damble is an alumni of Film and Television Institute of India, Pune, specializing in film and TV editing. Over the years, he has worn many hats as a creator, researcher, educator and storyteller, using diverse media as his canvas. His doctoral thesis, Creative Analysis of Song Picturization Technologies in Film, directed by Vijay Anand, reflects his engagement with and dedication with the cinematic craft. He is also the proud recipient of 2 prestigious fellowships from the National Film Archive of India and NFDC. His recent fellowship, completed in April 2023, explored transformation of Premchand by Satyajit Ray, while his earlier fellowship led to the 2022 publication of his book, a monograph of Gajanan Jagirdar by the Publications Division. After a notable stint with Star TV, Dr. Damble has been serving as a full-time faculty member with the TV Direction Department at FTII. He has also led FTII's Center of Open Learning, making short course in filmmaking accessible to wider audiences. His creative journey includes award-winning work such as his FTII Diploma film, which received the National Award for Best Film in Social Issue in 2005. And his first publication, Advait Sangeet, which was the opening film at IFFI Goa in 2011. His latest short film, Guntata Hriday Hai, written and produced by him, is currently making wave in the festival circuit, winning multiple awards including Kal Panizhar, Bharatiya Chitra Sandha and MIFF. Dr. Damble continues to contribute to cinema not only through film, also through research papers, articles and article writing, inspiring both audience and aspiring media professionals. Today he will be speaking on a topic that lies at the heart of impactful communication, the power of storytelling in digital media. Good morning. Is everybody conversant with English or any other language is preferred? Am I audible enough? So good morning to you all. I thank the head of the department, the VC ma'am and all my faculty colleagues here to have invited me here today to talk to you people. And I am also part of the academics of TMV, very much part of it, because I did my PhD from the same Vidyapit University that you all have become a part of now. And I look forward interacting with you. I got a little worried about listening to the host that was standing here, and I am very grateful, thankful that I am not an engineer. So I am not worried about what he was saying. All those things that hamara job jayega, hamara ye jayega, wo jayega. I am not worried about it. Creative person should not get worried at all. Automation and AI, he gave a little difference between the two. But the thing is that what I believe in is anything, unless you tell something to be done, nobody does it. On its own, it will not do anything unless you tell, you prompt, etc., etc. Of course, eventually you will have to learn it. You will have to get through all the things that are coming every day. While we are talking today, somebody is changing the technology somewhere. So you have to be updated with the technology. The number is quite big. 1400. Okay, 1,400. Okay, that's the first bet.
400, 500? Okay, so there is a difference of 1000. Okay, very good. हां 1400 फिल्म बनवण्याचा भारतीयाचा गिनीज वर्ल्ड ऑफ याच्यामध्ये किती कुठल्या वर्षीचा आहे ते महत्त्वाचं आहे. Okay, 1400 is a very less number, I would say. So what would be the number? Usually, yes. Usually we make or produce almost 2000 plus films in 1 year, and that is in all the languages. It's not only about Hindi or Marathi or Bengali, Malayalam, Tamil, Telugu, no. Okay, I'm very happy that you people watch films in the theater. Now tell me 10 films that you have watched last year. So we are talking about 2000 films released, and I'm requesting you to tell me 10 films that you have watched or you recall being released, etc. etc. हमको 10 फिल्मों को याद कराना है फटाफट. चलो पहला तुम्बाड़ तो बहुत पुरानी हो गई. अच्छा री रिलीज, ओके चलो री रिलीज. फिर अंदाज अपना अपना भी आएगी, फिर प्यासा भी आएगी, कागज के फूल भी आएगी, आर पार भी आएगी. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू फिल्म्स. स्त्री 2, ओके. छावा, हाँ माँ, हाँ ओके. माँ, yes, okay. सैयारा, हाँ the latest one. You liked सैयारा? How many of you watched it? You watched? You liked it? पैसा वसूल? No, you cried in the film? No, you laughed? You laughed at others who were crying? No, I am not dared as yet to go and watch. I am gathering the emotion to go and watch. I have heard a lot. Okay, so we have reached 4-5 films. 5 films more. Narsiha, okay. Sitare Zameen Par, okay, but it's not a theatrical release. Pay per view. But anyway, धड़क 2, okay. 7. हाँ? उरी बहुत पुरानी हो गई यार. अभी की कह रहा. War 2. चलो 2 चाहिए और. कैसे अभी ये 2 नंबर पे चलेगा हम लोग. इनकी तो पुरानी हो गई. ये साल की कह रहा हूँ. बुलबुलैया वो भी नंबर में, मतलब वो तो क्या कहते हैं जिसको, these people call it a franchisee. तो we are talking about franchisee. तो गोलमाल 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते रहेंगे. Anyway, हमको 10 फिल्में याद करने के लिए बहुत समय लगा है. तो 2000 फिल्म्स में if we are still able to find, or if we have to spend time to recall the 10 films, that means what is the quantity and the quality that we are producing. The reason being, now we have got the power to watch anything that we have in our mobile also. I am quite sure that all of you must be watching a lot of content on your mobile, because also there is no censorship. I don't know how much you interact with your parents, or do they ask you what are you watching, where is the data being consumed, etc. etc. But that is going to be the new time worrisome for all of us. All are following what I am saying? What I am talking? Do you have anybody has any problem in understanding? Please let me know. मैं आराम से हिंदी में भी बात कर सकता हूँ, कोई उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. Alright, okay. How many of you consume content over cell phones regularly? धीरे धीरे सोच के हाथ ऊपर कर रहे हैं. मतलब मोबाइल पे फिल्में, OTT का कंटेंट, वेब सीरीज, ये वो सब कौन देखता है? वेरी गुड, धीरे धीरे हाथ आ रहे. ओके, इंस्टा पे पढ़िक कौन है तुम लोगों में? पढ़िक इज द वर्ड. पढ़िक मतलब है सवेरे उठे नहीं रात से. कितने लोग ऐसे हैं जिनको रात में आँख खुलती है तो मोबाइल खोल के देखते हैं? बी ऑनेस्ट, कि कितने लाइक्स बढ़े, क्या रील्स आई है नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. करेक्ट. व्हाट डू यू थिंक इज दीज things that we are talking right now? It's a content. It's a audio-visual content which has given you an opportunity to say things that you want to say and to like things that you like. Like in the sense, तुम देखते हो and then you do not realize कि अरे इसमें कितना time चला गया. Are you getting my point? What I'm coming to is, see, in earlier times when film began its journey, it was a new medium of communication and expression, because you all are journalism, mass communication students. How many of you are here coming from the MA Masters first year I suppose. MA का कोई है? मैं बोल रहा हूँ सुनने आ रहा है ना? तो इतना डिले ट्रांसमिशन क्यों है दूसरी तरफ से? आपको पता है ना आप MA में एडमिशन लिया है? पता है ना MA के स्टूडेंट है आप? आर यू अवेयर? पक्का ना? तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो मुझे बताइए पहली फिल्म कहाँ बनी थी? MA आपका BA किस में हुआ है? हाउ व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन इन BA? बैचलर्स?
Mass communication, very good. So the question has gone to the right direction. If I stand here, it would be a better direction. So I can cover all three of you together. So first film कहाँ बनी थी? बहुत बढ़िया, congratulations. हमको ये पता नहीं था क्योंकि मैंने पहली इंडियन ये वर्ड यूज नहीं किया है. My question is कि पहली फिल्म कहाँ बनी थी? एक सलाह दे रहा हूँ. मुझे I don't know whether I am eligible to give you that opinion advice, but I'm giving you. Increase the appetite of listening. थोड़ा सुनने, ज़्यादा अच्छे से सुनने का थोड़ा appetite, मतलब कैपेसिटी बढ़ानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अब हम सुनना कम शुरू हो गया है, बताने के लिए हम लोगों में होड़ लगी हुई है कि पहले कौन ये बताता है जो व्हाट्सएप पे आया है. तो विदाउट वेरीफाइंग कि व्हाट हैज कम, वी आर ईगर टू पास इट ऑन. सो वी आर ईगर टू टेल इट टू समबडी हु इज अहेड, आई मीन हु इज नेक्स्ट टू अस. खैर, एनीबडी विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम गूगल. अच्छा, आई बिलीव कल मैडम ने पूछा था आइंस्टाइन कौन है. बर्वे मैडम ने पूछा था ना आइंस्टाइन कौन है. साइंटिस्ट है. क्या किया उसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन. हाँ, साइंटिफिक कुछ इन्वेंट. क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या सही जवाब दिया. हाँ, साइंटिस्ट होगा तो इन्वेंशन तो किया ही होगा. अच्छा, थोड़ा आगे जाके पूछता हूँ, क्या इन्वेंशन किया? मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पॉपुलर. करेक्ट सर. एमए स्टूडेंट. फर्स्ट हाँ, म्यूजिक प्रोडक्शन. ओके. मास्टर्स. डिप्लोमा. ओके, वेलकम. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एवर फिल्म प्रोड्यूस इंटरनेशनली. आर यू अवेयर? बीए के क्लास में हो तो अब आपको ये देखना है, आपको ये सीखना है इवेंचुअली. आई वाज होपिंग कि मास्टर्स वाले तो कम से कम बताएंगे जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट रह चुके हैं. अच्छा, थॉमस अल्वा एडिसन ये नाम सुना है एमए वालों? उसने क्या, मराठीत आपण म्हणा दिवे लावले, उसने क्या किया? त्याने एक्चुअली दिवे लावले, है ना. और हमारे लिए क्या किया? जब मतलब अब व्हाइल आई एम आस्किंग, मतलब कुछ तो किया होगा, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव आस्क्ड, है ना. मास कम्युनिकेशन के लिए एडिसन का कंट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है, एडिसन ने कैमरा पे बहुत एफर्ट्स लगाए और उसका जो सिनेमाटोग्राफ नाम का एक जो चीज़ उसने बनाया था वो इवेंचुअली ल्यूमियर ब्रदर्स ने ले लिया. अब ये ल्यूमियर ब्रदर्स कौन है? दिस आई एम गिविंग यू अ लिटिल ओरिएंटेशन वेयर देयर वाज नो डिजिटल वर्ड आल्सो इन्वेंटेड. देयर वाज नो डिजिटल मीडिया, डिजिटल करेक्शंस, डिजिटल रिक्रिएशन, डिजिटल प्रोडक्शन. All these words were not there at all. These people were living into the analog age. ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जिसको अभी 130 साल कंप्लीट हो जाएंगे. Cinema is a comparatively new art form. Very new, very, very young. It has not completed even 130 years. So if we take the December 1895, so they are yet to complete 130 years. तो इस साल सिनेमा 130 साल कंप्लीट करेगा, अभी तक किया नहीं. मगर खतरनाक अच्छी बात उसकी ये है कि सिनेमा एक ऐसी विधा करके निकली जिसने सारे आर्ट फॉर्म्स को अपने अंदर खींच लिया. यू थिंक ऑफ एनी आर्ट फॉर्म एंड यू विल फाइंड इट इन फिल्म. फॉर एग्जाम्पल, हमने सोचा नहीं होगा ये कभी, अगर इस तरह से सोचो. अब ये सर म्यूजिक के स्टूडेंट है, आप म्यूजिक सोचो तो इंडिपेंडेंटली वेस्टर्न क्लासिकल है, इंडियन क्लासिकल है, इंडियन क्लासिकल में कर्नाटिक है, फिर अलग अलग परंपराएं अपने देश में, जो क्लासिकल की अलग अलग परंपरा है, जो म्यूजिक की परंपराएं हैं बहुत सारी अपने देश में. मगर आप सिनेमा खोलो तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी थिंक ऑफ म्यूजिक, वी हैव म्यूजिक इन फिल्म्स एंड ऑल्सो इन डिफरेंट फॉर्म्स. म्यूजिक नॉट ओनली सॉन्ग्स, बैकग्राउंड भी है और कई अलग अलग तरह से. करेक्ट. सो अलॉन्ग विद दैट व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी हैव? मार्शल आर्ट्स मीन्स व्हाट? वन वर्ड, एक्शन. ठीक है, एक्शन है. ड्रामा है, सो म्यूजिक है, ड्रामा है, एक्शन है, और कॉमेडी तो जॉनर हुआ, ड्रामा का पार्ट है वो. आई एम सेइंग स्पेशलाइजेशंस. स्टोरी है ऑफकोर्स, वो तो है ही, अगेन पार्ट ऑफ ड्रामा है वो. So, what are the other things? So, music हो गया, ड्रामा हो गया, what did we say? Makeup हो गया, action हो गया, set design, architecture, a very important part of film production. And makeup हुआ तो costume भी आएगा, of course. Editing, but editing is part of the film production process. It is not evolved as an art. But उसमें ये सब कुछ है ना, जैसे sculpting है, जो art direction का part है, मॉडलिंग है, देन लाइटिंग है, ये सारे जो चीज़ें हैं उसके आर्ट फॉर्म्स की जो पार्ट है, जैसे डांस हुआ बहुत बड़े लेवल पे. तो ये सारी चीज़ें, वॉट एवर यू थिंक ऑफ एन आर्ट फॉर्म, यू विल फाइंड इट इन फिल्म. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ सिनेमा. एंड द अदर सेकेंड, विच इज़ द सेकेंड बेस्ट पार्ट, इज देर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग इन फिल्म. सही और गलत ऐसा सिनेमा में कुछ नहीं होता. आपको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा. सो इट्स अ वेरी बिग टाइम परसेप्टिव आर्ट, जिसको हम बोलते हैं परसेप्शन. एक होता है ना, मुझे अच्छा लगा तो जरूरी नहीं कि यू ऑल्सो लाइक इट.
I will have my own reasons for liking or not liking, disliking. You may have your own reasons for liking and disliking. Hence, even now filmmakers have not been able to grasp कि क्या चलेगा. What is it that will run on a box office? Nobody has been able to say कि ये चलेगा. That's a history. 130 years we have been watching. Okay. So what did Lumières do? दो भाई थे, ऑगस्ट एंड लुई ल्यूमियर. उनकी खुद की कपड़े की फैक्ट्री थी. तो उन्होंने एडिसन का जो सिनेमाटोग्राफ था उसको ले लिया एंड दे स्टार्टेड putting the camera in front of their factory, or they rolled it, and whatever they got, we have got today as a first ever film which we call as a realist cinema. उसमें कोई story नहीं. Why I am talking about this is today we are discussing about story, the power of story, right? This particular format was addressed as a realist film, meaning what? They have not tampered it at all. There is no idea of somebody's acting or anything like that. कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन्होंने खुद जाके करेक्शन मेजर्स लेके करी है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद डिजिटल टेक्नोलॉजी. इन अर्लियर टाइम्स देर यूज टू बी समथिंग कॉल्ड फिल्म. तो एक रील होता था, एक रोल होता था 400 फीट 1000 फीट इस तरह से, एंड इट यूज टू गेट पुट इन टू अ कैमरा, and then according to the lens you fix an image, a composition, and then you roll the camera, and there used to be a machine which is connected with a battery, so the battery provide the power to the machine and it will start rolling, and as it goes through the lens in front of the camera, every frame used to go getting exposed with the light. So हम लोग ऐसा कहते हैं कि हर 24 फ्रेम्स में, बिकॉज अ कैमरा रन्स 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, दैट मीन्स एक सेकेंड में 24 फ्रेम्स कैमरा के सामने से निकलती है, लेंस के सामने से. उसका मतलब क्या है कि हर एक फ्रेम 24 फ्रेम से हर एक फ्रेम एक एक इंडिपेंडेंट इमेज है. देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस फ्रेम एंड दिस फ्रेम एंड दिस फ्रेम. Just because they are appearing one after the other, we think that they are creating a sense of motion. In our field, there is something called moving images. So we began with not moving images, our journey began with still images. एक single frame के हिसाब से हमने अपना जर्नी शुरू किया. एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सिनेमा की पढ़ाई करो ना तो सिनेमा के अंदर बहुत अच्छी बढ़िया स्टोरीज है. यूएस में एक बार में कुछ लोग बैठे थे, उसमें एक मिलियनर बैठा था और एक फोटोग्राफर बैठा था, एंड ऑन अनदर टेबल वेयर दिस मल्टी मिलियनर वाज सिटिंग, दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट हॉर्स गैलपिंग ऑन अ रेस कोर्स. मतलब क्या है कि घोड़ा जब भागता है तो वो कैसे भागता है, इसकी बातें उनकी चल रही थी. क्योंकि वो मल्टी मिलियनर जो आदमी था उसके पास घोड़े थे, ही हैड अ स्टेबल विथ हिम, तो उसके पास बहुत सारे घोड़े थे, तो ही वाज आर्ग्यूइंग कि घोड़ा भागता है तो ऐसे ऐसे होता है. दूसरे एक टेबल पे एक एडवर्ड मेब्रिज नाम का एक फोटोग्राफर बैठा था, एंड ही वाज लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन कि क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है. तो उनके बीच में बेट क्या लगी कि घोड़ा जब भागता है, विच इज कॉल्ड गैलपिंग, इट्स नॉट रनिंग फास्ट, इट इज गैलपिंग, मतलब धीरे पेस में घोड़ा जब भागता है, तो एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा आता है जब घोड़ा जमीन से ऊपर रहता है. मतलब उसका एक भी पैर, चारों में से एक भी पैर जमीन को टच किया हुआ नहीं है. ऐसा एक फ्रेम एक जगह बीच में ऐसी आती है. दिस वॉज द बेट. तो जो एडवर्ड मेब्रिज था उसने वो बेट ले लिया और बोला मैं प्रूफ करता हूँ कि घोड़ा हवा में रहता है एक बार कम से कम. लूप में जब चलेगा 4 बार पैर डालेगा तो 5वीं बार ऐसा वक्त आएगा कि जब घोड़े का एक भी पैर ज़मीन को छुएगा नहीं. तो मल्टी मिलियनर था, उसको तो ही वॉज रेडी फॉर अ बेट. तो दिस एडवर्ड मेब्रिज क्या किया, उसने क्या किया, ही वेंट टू द रेस कोर्स, ही गैदर्ड अ फ्यू कैमराज, he had a couple of them, plus he gathered a few cameras and he put them across on the race course. तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस है, मतलब एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, ऐसे उसने 16 कैमराज लाइंड अप कर दिए. और उसका जो स्विच था जिसको हम स्विच ऑन कर, मतलब जो क्लिक करते हैं, जो क्लिकिंग जगह होता है, बटन होता है, उसको उसने रोप से अदर साइड कील ठोक के बांध दिया. तो कैमरा इधर है, उसका स्विच ऑन करने का जो गणित किया है वो उस तरफ है, जो रोप लगा है वो उधर है, बीच में से घोड़ा भागेगा, ऐसा आइडिया था. तो ही मेड अ हॉर्स रन इन बिटवीन, मतलब कोर्स पे एक घोड़े को उसने भगाया. जैसे ही वो घोड़ा भागा, वो जैसे जैसे उसके पैर आगे बढ़ते गए तो वो स्ट्रिंग काटता गया. तो एक एक जो स्ट्रिंग बांधी थी वो घोड़े के पैर से कटती गई. तो नाजुक धागा था, वो टूटता गया.
एंड एवरी टाइम द हॉर्स लेग कट द स्ट्रिंग, वो कैमरा में अपना अपना एक एक पिक्चर वो क्लिक अपने आप ही करते गया. तो ही हैड सच इमेजेस, तो ही पुट देम ऑन अ सर्कुलर मशीन एंड देन ही रोटेटेड इट टू सी कि अरे ऐसा लग रहा है घोड़ा भाग रहा है. हम सब ने बचपन में देखा एक फ्लिक बुक करके एक चीज़ होती है, जैसे हम फ्लिक करते तो ऐसा लगता है एक सिंगल एक्शन चल रही है. ही गॉट सिमिलर रिजल्ट्स, बट द बेस्ट पार्ट वाज देयर वाज वन फ्रेम एवरी लूप में जहाँ पे घोड़ा हवा में था और वो बेट जीत गया. वो बेट इतना पॉपुलर हुआ कि पीपल स्टार्टेड डूइंग दिस एज एन एक्सरसाइज कि घोड़ा हवा में जाने के लिए जो 16 फ्रेम्स कंपोज किए थे वो एक के बाद एक इस तरह से चलने लगे जैसे कि घोड़ा भाग रहा है. एंड दैट स्टार्टेड द आइडिया ऑफ मूविंग इमेजेस. हालांकि हर एक फ्रेम एक आइसोलेशन में विदाउट मूविंग इमेज ही है. वी एड्रेस थिंग्स इन अ टाइम एंड स्पेस जोन. आप में से कभी कोई म्यूजियम गया है? किसी म्यूजियम में गए हो आप? कहाँ गए हो भाई? कौन से म्यूजियम गए हो? किस तरह का म्यूजियम? मतलब आर्टिफैक्ट्स का, पेंटिंग का, आर्टिफैक्ट्स का. वहाँ पे क्या, कौन सा इमेज, कौन सी चीज़ याद आ रही है तुम्हें? जस्ट नाउ ही सेड कि देर आर हिस्टोरिकल चीज़ें जो है वो म्यूजियम में रखी जाती है. करेक्ट? नाउ दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इन 2025. थिंक अबाउट 100 years आफ्टर टुडे. विल दिस वॉच बी पार्ट ऑफ द म्यूजियम? बिकॉज 100 years लेटर दिस पर्टिकुलर डिजिटल वॉच और दिस, इसको क्या बोलते हैं? दिस नॉट अ डिजिटल, व्हाट इज दिस? ये गिफ्ट मिला है तो एक्चुअली क्या इसको क्या बोलते हैं? एक स्मार्ट वॉच. ये हो सकता है एब्सोल्यूट हो जाएगा अगले 5-10 साल में, और हो सकता है 100 साल के बाद ये लगेगा, लोग इसको देखेंगे अरे 100 साल पहले लोग इस तरह की घड़ी ऐसी कोई चीज़ पहना करते थे. हो सकता है वी में द किड्स में बॉर्न विथ सम काइंड ऑफ थिंग इन देयर बॉडीज इटसेल्फ विच विल एक्चुअली स्टार्ट काउंटिंग कैलोरीज, दिस दैट फलाना ढिमकाना एंड 50,000 चीज़ें. Recently I visited a HMT factory. How many of you have heard this word HMT? Very good, thank you very much. आप लोगों ने अंदाज अपना अपना देखी है क्या? 2-3 लोग. अभी री रिलीज पे भी नहीं देखी थिएटर में, जी टॉकीज पे भी नहीं देखी. अरे यार, यू आर मिसिंग समथिंग. यू शुड वॉच अंदाज अपना अपना. अनफॉर्चुनेटली अंदाज अपना अपना did not do well in theaters, but it has earned a cult status over time over Z talkies or Z cinema. जी सिनेमा पे अंदाज अपना अपना हमेशा ही चलती रहती है, और रिसेंटली दे रिलीज्ड इट ऑल्सो इन थिएटर्स, पीवीआर्स में. खैर, कहने का मतलब ये है कि अंदाज अपना अपना देखी होती तो हो सकता है HMT का रेफरेंस आपको पता होता. उसमें जो विजू खोटे के साहब के लिए एक डायलॉग है, वो कहता है इसका नाम राम गोपाल बजाज बदल के HMT रखना चाहिए, बिकॉज HMT का टैगलाइन है टाइम कीपर्स टू द नेशन. HMT is a Indian company, government company, which used to make watches, but also make engineering goods. तो HMT के ट्रैक्टर्स भी होते थे एक ज़माने में. खैर, तो मैं अभी रिसेंटली बैंगलोर में था, तो आई हैड गॉन टू सी द फैक्ट्री एंड द म्यूजियम एंड द सोविनियर शॉप एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसमें जब पहली बार इंडिया में रिस्ट वॉचेस बनने लग गए, तब के वॉचेस अभी रखे हुए थे. एंड एवरी वॉच हैज़ अ स्टोरी, बिकॉज जैसे हमारे देश में अलग अलग नाम होते हैं ना, वैसे HMT घड़ियों के नाम होते थे. आप लोग घर जाना और अपने पेरेंट्स को पूछना या किसी सीनियर आदमी को पूछना कि HMT का तुम्हारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. हो सकता है ज़्यादातर लोगों की पहली घड़ी HMT हो. सीनियर्स में दादा है, दादी है, नाना नानी है, या बड़े बुजुर्ग अगर है तो उनको ये पूछना कि HMT का मतलब क्या है. तो मोस्ट ऑफ देम हैड देयर फर्स्ट रिस्ट वॉचेस कमिंग फ्रॉम HMT. उसकी खासियत ये थी कि उनके नाम रखे जाते थे, सुवर्णा, ललित, नंदा, गोपी, इस तरह के नाम सीरीज होती थी उनकी. एंड दैट वाज अ टिपिकल इंडियन काइंड ऑफ आइडिया HMT हैज़. एनीवे, अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है कि मैं कहीं का कहीं बीच बीच में निकल जाऊं, तो कोई ना कोई ज़रूर उसका ट्रैक रख रहा है कि हम लोग कहाँ थे. सिनेमा की भी ये खासियत है, बीच बीच में हम लोग छोटी पैरेलल स्टोरीज लेके निकलते हैं आगे. शोले देखिए. शोले की मेन स्टोरी क्या है? मतलब शोले का अगर क्रक्स एक लाइन में बताया जाए तो क्या हो सकता है? जय वीरू की यारी हो सकता है, ठाकुर का रिवेंज हो सकता है, करेक्ट, ठाकुर का बदला है, या गब्बर सिंह की दहशत हो सकता है. इसके पैरेलल ट्रैक्स क्या है? सुरमा भोपाली, घोड़ा गाड़ी, बसंती है, चलो बसंती की गाड़ी, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर, ये सारे पैरेलल ट्रैक्स है ना. मगर ये पैरेलल ट्रैक्स होने के बावजूद शोले अपना मेन लाइन पकड़ के चलती है.
ट्रैक निकल के वापस शोले मेन लाइन पे आती है, करेक्ट। तो सिनेमा की क्लास का कुछ ऐसा ही होता है। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। हम लोग ना अभी बात कर रहे थे ना, फ्रीज्ड इन अ मोमेंट। तो नाउ ही सेड कि एक म्यूजियम में आप गए जहाँ पे पेंटिंग्स रखे हुए हैं, करेक्ट। तो आप म्यूजियम में जाते हो, पेंटिंग लगाए, देयर इज अ बेंच। मोस्ट ऑफ द म्यूजियम हैज अ ट्रेडिशन and a part of their culture that they have a bench, so you sit on the bench and you observe the painting, correct। मान लो कि आपका फ़ोन बज गया, आप म्यूजियम के बाहर चले गए, which is also part of a culture that you don't talk over the phone in museum। फ़ोन बजे तो भी गलत लगता है, तो आप बाहर गए, फ़ोन पे बात किया, वापस आया, तो जो पेंटिंग लगी है उसमें कोई फ़र्क आता है? बिकॉज क्यों नहीं आता फ़र्क? पेंटिंग है, फ़र्क क्यों नहीं आता? करेक्ट, वो वहीं लगा हुआ है पेंटिंग। एक बात हो गई। दूसरी, सेम पेंटिंग है, पेंटिंग बदली नहीं, वही पेंटिंग है, मगर उसमें जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर थोड़ा सोचो। ये बोली कि पेंटिंग वही है, करे वहीं लगी हुई है, कोई चेंज नहीं है, मगर मैं बाहर गया, 2 साल के बाद आया वहाँ पे, तभी भी वो पेंटिंग है, वो वहीं रहेगी, मगर वो पेंटिंग के अंदर जो चीज़ है वो भी वहीं रहेगी, बिकॉज इट्स अ कैप्चर्ड टाइम एज अगेंस्ट टू। अभी आपको मैं ये फिल्म दिखा रहा हूँ, किसी का फ़ोन आता है, आप बाहर चले जाते हो और जब तक वापस आते हो ये फिल्म वहीं रुकी नहीं है, वो बढ़ी है आगे। दैट इज़ द प्राइमरी फीचर ऑफ सिनेमा, दैट इट गोज़ अलॉन्ग विथ टाइम एंड स्पेस। ये थोड़ा ज़्यादा है, इतना मैं उसके डीप में घुसने नहीं वाला हूँ। आप जैसा सिनेमा धीरे धीरे अप्रिसिएशन लेवल पे पढ़ना शुरू करोगे, आपको वो चीज़ें धीरे धीरे पता चलने लगेंगी। मैं थोड़ा एमए वालों के लिए थोड़ा सा खुरेदने की कोशिश कर रहा था, ताकि उनको वो चीज़ें याद आए जो ऑलरेडी वो सीख चुके हैं। खैर, व्हेन वी वॉच दिस रियलिस्ट फिल्म, हमको क्या मिलता है? हमको ये देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं है, कैमरा रखा, रोल किया, जो दिख रहा है सामने वो कैमरा शूट कर रहा है। हमको आज की तारीख में 100 साल पहले की चीज़ जब देखते हैं तो ये पता चलता है कि उस टाइम के घोड़े कैसे होते थे, घोड़ा गाड़ी कैसे होती थी, समर्स में क्लोथिंग क्या होती थी, विंटर्स में क्लोथिंग क्या होती थी, कपड़े लोग कैसे पहनते थे, यार दोस्तों के बीच में बातें किस तरह होती थी, वुमेन क्या पहनती थी, मेन क्या पहनते थे। इन अ वे दिस बिकम्स अ आर्काइवल फुटेज फॉर अस, जो उस वक्त के फ्रेंच को दर्शाता है, फ्रांस को दर्शाता है कि ऐसे लोग उस वक्त वहाँ पे थे। करेक्ट। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये म्यूज़िक बाद में दिया गया है, उसका कारण है क्योंकि एक म्यूज़िक के स्टूडेंट अपने में है। ये फिल्में जब बनी तब साउंड नहीं था, इट वॉज ऑल साइलेंट वर्क। ये आप देखना, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसको ज़रा बारीकी से देखो। ये लुमियर ब्रदर्स की फिल्म है जिसका नाम था ल जार्डनर, मतलब गार्डनर। अब विथ म्यूजिक चलाता हूँ। जो पहले 2 देखे उसमें और इसमें कोई फर्क है? इसमें भी कैमरा एक जगह रखा हुआ है। ड्रामा में, मतलब नाटक में जिस तरह होता है कि मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, आप कितना भी चाहे आप यहाँ आके नहीं देख सकते। अगर मैं कहूँ कि थम्स अप, करेक्ट, और यहाँ पे कोई डिज़ाइन है मान लो फॉर एग्जांपल, तो आपको कितना भी चाहिए कि इसमें क्या डिज़ाइन है वो देखे। इन अ थिएटर परफॉर्मेंस, ड्रामा में आप लोग पास आके देख नहीं सकते हो, मगर सिनेमा में क्या होता है, इसका क्लोजअप लगेगा और आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ क्या डिज़ाइन है। करेक्ट है। उसी तरह से ये भी शूट किया है, इसमें कोई लेंसिंग नहीं है, कोई एंगल नहीं है, कुछ नहीं है, जैसा कैमरा रखा, रोल किया, शूट हो गया। मगर डिस्पाइट दैट, द फर्स्ट 2 थिंग्स दैट वी सॉ, वर्कर्स कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्री, एंड दिस हैज अ डिफरेंस। करेक्ट। व्हाट इज इट दैट दे वर ट्राइंग टू से? मतलब क्या है? वो तो हुआ कॉमेडी, कॉमेडी हुआ उसके एक्शन की वजह से। उसका मतलब क्या है? द वर्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर। हाँ, मतलब एक बेसिक उसका एक वर्ड है जो हमने अभी डिस्कस किया है। ह्यूमर तो आया, वो तो बना उससे। somebody said it, स्टोरी। दिस हैज अ स्टोरी कि एक माली है जो पानी दे रहा है, गार्डनर है, पानी दे रहा है, वो ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। एक लड़का आता है, पैर रखता है, पानी रुक जाता है, उसको पता चलता है, एकदम से कॉमेडी होती है और वो फिर वो लड़के को पकड़ता है। उसका मतलब क्या है? जैसा हम कहते हैं बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, वो सारे कैरेक्टर्स उसमें दिखते हैं। करेक्ट। एंड दिस कुड बी सीन एज द फर्स्ट एवर वर्क ऑफ फिक्शन। हम लोग जिसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग इन सिनेमा। मतलब क्या है? फिल्म हमें एक कथा बताता है, एक स्टोरी बताता है। करेक्ट। माने क्या, मतलब क्या है? कोई भी डायरेक्टर है जिसके दिमाग से, उसकी उपज से एक स्टोरी बनती है, जिसको वो लिखता है, उसको स्क्रीन प्ले लिखता है, डायलॉग्स लिखता है, प्रोडक्शन में जाता है,
फिर फिल्म लिखी जाती है, फिर इवेंचुअली प्रोडक्शन में शूट किया जाता है, फिर उसको एडिट किया जाता है, म्यूजिक बैकग्राउंड ये वो सब चीज़ करके इवेंचुअली इट गोज़ फॉर रिलीज। वो स्टोरी, जैसे ये सैयारा अभी नाम लिया आपने, एक स्टोरी है किसी दो लड़का लड़की की, और इवेंचुअली वो एक फिल्म में कन्वर्ट हो गई, जो एक आइडिया था बेसिकली, और फिर उसको जाके लोगों के सामने उसने रखा, भाई ये मेरी फिल्म। उसमें बहुत लंबी प्रोसेस गई। ट्रेलर भी कथा कहता है। कुछ लोग ट्रेलर देख के ये डिसाइड करते हैं कि पिक्चर देखनी है कि नहीं देखनी है, क्योंकि उसमें देते हैं थोड़ा सा चम्मच भर, मेडिसिन कैसे होता है ना, एक चम्मच ले लेना स्पून, तो वो वैसा भी होता है। कुछ लोग ट्रेलर्स देख के, कुछ लोग पोस्टर्स देख के डिसाइड करते हैं, कुछ लोग इमेज, आपके यहाँ तो इंस्टा वगैरह पे, आप सब लोग हैं क्या इंस्टा पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, सब लोग सब जगह है। Isn't it like wishing somebody in the kitchen, hi, good morning, how are you? Then you go to dining room and saying the same thing to the same person, hi, how are you? Then going to the balcony and wishing the same person, hi, how are you? Then going to the parking and saying, hi, how are you? There you go and ask, acha, where are you going? Instead the same thing could be asked in the kitchen only, na? Isn't it that is happening? How many of you exactly know on your Facebook how many actually are your friends in the friends list? Do you think they are justified as friends, though they are called friends? दोस्त क्या होता है? किसी ने मुझे एक दिन एक शादी में कहा, I was very rude, मैं गलत बोला मैंने, जो जवाब दिया मैंने। एक लेडी आई मेरे पास एंड शी सेड, ऐसा ऐसा एक लड़का तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है, वो तुम्हारा मतलब तुम्हारा दोस्त है। तो मैंने कहा नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं सिर्फ जानता हूँ उसको। एंड अनफॉर्चुनेटली शी वेंट एंड टोल्ड हिम द सेम थिंग। वो जाके उसको बोली कि तुम्हारे दोस्त जो तुम बोलते हो उसने ऐसा बोला। एक्चुअली ऐसा ही था। मुझे तो जो सही, मुझे वही सही लगा था कि वो मेरा दोस्त नहीं, मैं जानता हूँ उसको। तो दोस्त होना और जानना, या दोस्त होना जानना भी दूर, वो एक कोई है। ऐसे बहुत लोग अपने, स्पेशली मैं तो इसलिए मैंने छोड़ ही दिया वो। अब वो डाइनिंग रूम किचन विचन वाला लफड़ा ही नहीं है, हाँ पद है ही नहीं उधर। उसमें बड़ा सुखी है, करके देखो एक दिन, व्हाट्सएप बंद कर दो दिन भर। खैर, तो ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, वो प्रोसेस तब से चल रही है, और हो सकता है दे डिड नॉट नो दैट दे आर एक्चुअली टेलिंग अ स्टोरी थ्रू फिल्म, एंड देयर वाज नो साउंड। अब तो ये जब वो वाटर होस खुलता है तो एक पीछे एक साउंड बजता है, विच एड्स टू द ह्यूमर, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिक टू द ह्यूमर, करेक्ट। इसके बाद एक चीज़ और है, आपको और कुछ, देयर आर 3 people who are sitting at a table, they are playing some game, and there is a baira who servant है कोई, जो आके खड़ा होता है, he brings some bottle and glass, जो भी है वाइन है, जो भी है, whatever it is, just observe that person who is going to come, जो आएगा वो अपना काम क्या कर रहा है उसको सिर्फ देखना। इन तीनों को नहीं देखोगे तो भी चलेगा। कर क्या रहा है वो, उसका काम क्या है, ग्लास और बोतल ला के रखो और चले जाओ। वो जा नहीं रहा, वही खड़ा है, वो खड़ा तो है, कर क्या रहा है, चापलूसी कर रहा है, अच्छा ठीक है, और ही इज एंजॉइंग, करेक्ट। एंड एकदम सिंपल है, अपने हमने अभी देखा, ही इज डूइंग समथिंग out of purpose, but it is not expected of him to do if we consider him to be the character of a baira, servant. Is he? Yes. Okay, he is trying to enjoy the things that these 3 people are doing. However, the 3 people are in their characters. उनको बोला गया है कि ये तुमको करना है, वो वही कर रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा कर रहा है, वो ज़्यादा क्या कर रहा है वो मैं पूछ रहा हूँ। ओवर एक्टिंग इज अ टर्म दैट वी थिंक नाउ, फॉर हिम ही इज एक्टिंग, and for that time he is actually acting, and he is acting with a reference of stage possibly, correct. There is one more thing that person is doing, he is making us feel that there is a camera, he is giving a sense that there is a camera which is recording. So intermittently he keeps looking at the camera and letting us know, अच्छा यहाँ पे कैमरा भी है, जो कि स्टोरी टेलिंग में होना नहीं चाहिए। कैमरा लाइक ऑडियंस इज सपोज टू बी टोटली इनविजिबल, हमें पता नहीं चलना चाहिए ना कैमरा है करके। वी वॉच सिनेमा, अगर बार बार आपको ये बताया जाए कि अरे यहाँ पे कैमरा है, तो आप यू कीप कमिंग आउट ऑफ द स्टोरी, आप बार बार बाहर निकल के आओगे स्टोरी में से। तो एक इनविजिबल थिंग है, यू आर वॉचिंग एज इफ यू आर वॉचिंग इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज, द स्टोरी इज गेटिंग अनफोल्डेड इन फ्रंट ऑफ योर आइज, दैट इज हाउ वी वॉच फिल्म। अगर हमें बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम ना सिनेमा देख रहे हो, तुम सिनेमा देख रहे हो, तुम सिनेमा देख रहे हो, तो हम बार बार वो स्टोरी से बाहर निकल के आएंगे।
हमारी फिल्मों में एक ही इंटरवल होता है जब हमको ये दिया बताया जाता है कि अरे अच्छा अभी ये फिल्म रुक गई है, अभी हमको तुरंत पॉपकॉर्न खाना है, वापस आके हम कोल्ड ड्रिंक लेके फिर सिनेमा में बैठना है, फिर वही वहाँ से शुरू होगा जहाँ पे हमने उसको छोड़ा है। ये फिल्म जो एक 30 सेकंड की है और आजकल हम जो इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं उसमें कोई फ़र्क है? सोच के बताना। मैंने नहीं सोचा है क्योंकि मैं इंस्टा पे नहीं हूँ, ना ही मैं रील्स देखता हूँ। तुम लोग बताओ सोच के। नहीं वो तो है, ठीक है, इसको कलर कर दे अगर तो कोई फ़र्क है? कंटेंट की बात कर रहे हैं ना हम, स्टोरी की बात कर रहे हैं। कोई किसी भलती भाषा में कुछ बनाता है और हम लोग बड़े चाव से उसको देखते हैं। हमको भाषा भले ही समझ में नहीं आई, उसमें से कुछ ह्यूमर निकलता है तो हम बड़े हंसते हैं और लोगों को 50 लोगों को और भेजते हैं। वो ऐसा कई बार होता है ना, कोई किसी गाने पे कोई कर रहा है। जैसे नाइजीरिया में फिल्में बनती है, वहाँ शाहरुख खान की फिल्मों का रीमेक होता है। शाहरुख पॉपुलर है वहाँ पे उसकी फिल्मों का रीमेक। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का नाइजीरियन अवतार देखना कभी मिले तो, मतलब हंस के लोटपोट हो जाओगे। उन्होंने बहुत कन्विक्शन से किया है, मगर नाउ द लैंग्वेज हैज, द फिल्म्स हैव क्रॉस द लैंग्वेज बैरियर। यू नो कि चाइना में सबसे पॉपुलर 3 फिल्में आमिर खान की इस वक्त कौन सी है, जो कि ऑल तीनों इंडियन फिल्म्स ही है, एंड ऑल 3 बिलोंग टू आमिर खान। जो यहाँ भी नहीं उतनी चली, खैर लगान तो चली रिसेंटली, दंगल का तो हमने देखा क्या हुआ। पीके हाईएस्ट ग्रॉसर एंड 3 इडियट्स एंड दंगल, सॉरी दंगल नहीं, और आई वांटेड टू से सम अदर, हाँ लाल सिंह चड्ढा आई वांटेड टू से। तो चाइना में सबसे पॉपुलर फिल्में कौन सी है? पीके, दंगल एंड 3 इडियट्स। पीके ने एवरेज बिजनेस किया अपने यहाँ, वहाँ पे सुपर हिट हो गई वो। तो जस्ट इमेजिन वो जो उनका जो लड़का है वो चाइनीज में बात कर रहा है, एंड दे थिंक दैट इट्स क्लोजर टू देयर सिस्टम्स ऑल्सो, सो हेंस दे इट्स वेरी पॉपुलर। खैर यहाँ से हुआ स्टोरी टेलिंग का चलन। जब सिनेमा शूट होता था निगेटिव्स में, उसको प्रिंट होके आती थी पॉजिटिव, फिर उसको हम लोग एडिट करते थे, फिर उसको साउंड के लिए भेजा जाता था, फिर वहाँ पे साउंड लगता था, ऐसा पूरा लंबा प्रोसेस होके हम लोग की फिल्म बनती थी। मैं उस जनरेशन का पार्ट हूँ जो हम माइग्रेंट बोलते हैं। हमने शुरू किया एनालॉग में, फिर माइग्रेट हो गए डिजिटल टेक्नोलॉजी में। तो शुरू के दिनों में ऐसी व्यवस्था होती थी कि सवेरे क्लास करो, जिस क्लास में फिजिकली पॉजिटिव प्रिंट एक होती थी, उसको काटो जोड़ो, काटने के पहले 10 बार सोचो, क्योंकि एक बार कट गया तो कट गया। पेपर जैसा है, भले ही काट दो, टेप लगा दो, मगर टेप रहेगी, उसका मतलब एक बार 2 टुकड़े हो गए मतलब हो गए। जो रिलेशनशिप्स में कहते हैं ना, कई बार भाई संभाल के, एक बार रिलेशन टूट गया मतलब वैसा ही फिल्म का होता था। अब क्या है, डिजिटल है, कोई 2 चीज़ें जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि फिजिकलिटी में है ही नहीं, सब वर्चुअल काम है। करेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से सेल्फी मास्टर कौन है? सेल्फीज लेना किसको पसंद है? लेते हो? कितना दिन का राशन रखा है? नहीं, कुछ लोग है उनको पता नहीं, और डेली राशन होता है। नहीं, राशनिंग नहीं है। कितना लेते हो एवरेज? तभी लेते हो। ऐसे जनरली सेल्फीज लेने की आदत किसको है? वो कोई खराब है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बी ऑनेस्ट, कोई खराब वाली बात नहीं कह रहा मैं, अपने अपने आदत है, सबका लाइकिंग है डेली। और उसको क्या करते हो फिर? यू ऑल्सो टेक डेली सेल्फीज, मतलब यू लाइक, ओके। सो व्हाट डू यू डू वंस यू हैव क्लिक से 10 सेल्फीज आपने ले ली, दोस्त मतलब तुम्हारी सहेलियों के साथ या इंडिविजुअली जो भी, व्हाट डू यू डू विद दैट? फॉर क्रिएटिंग अ मेमोरी। ओके, मेमोरी बन गई, आगे बस फिर अगले साल गूगल बताएगा कि इस दिन आप यहाँ पे थी। वो काम हमें नहीं करना है, उसके लिए कोई और रखा है हमने, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं, हमारा काम है ये, और वो हो गया। फिर उसका क्या हुआ साल भर में, वो हमारा डेटा लेके बैठा हुआ है, स्टोरेज पे खा रहा है, उसको कोई अपने को लेना देना नहीं। अगले साल गूगल जब बताएगा तब याद आएगा, देन विल थिंक के 10 फोटो खींचे थे, उसमें से 9 कोई काम के नहीं है, डिलीट करो। तब तक वो अपने स्टोरेज में पड़ा रहता है। करेक्ट। जैसे हमारे घरों में प्लास्टिक की थैलियाँ कैसी पड़ी रहती है ना, हमारी आदत है, आ गई प्लास्टिक की थैली, रखो उसको, कभी काम आएगी, वो कभी काम नहीं आती, वो फिर एक दिन सारी निकलती है और चली जाती है भंगार वाले के पास, है ना, कूड़े में कबाड़े में निकल जाती है।
आपकी क्या आदत है? व्हाट डू यू डू विद दोस सेल्फीज? स्टोर करते हो? अच्छा, सेल्फीज, अरे ये तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। आई मस्ट गिव यू अ राउंड ऑफ अप्लॉज कि इतने लोगों में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जो सेल्फीज खींचते हैं। वाह भाई, ये मतलब इतना बड़ा रिविलेशन हो गया आज की डेट में, बड़ा अचीवमेंट है ये कि 2 ही लोग हैं जो सेल्फी खींचते हैं, बाकी तो कोई सेल्फी खींचता ही नहीं, बाकी लोगों को पता ही नहीं सेल्फी क्या है। भाई हमको तो पता ही नहीं, हमने कभी सेल्फी नाम का वर्ड आज ही सुन रहे हैं पहली बार। 1-2 लोग तो ऐसे ही देख रहे हैं मेरी तरफ कि अच्छा सेल्फी क्या होती है, ऐसा टाइप। हमने कभी खींची ही नहीं सेल्फी, है ना। देखो बड़ी एक मज़ेदार बात है, सेल्फी कई बार बड़ी डेंजरस प्रूव होती है, एंड हाउ द स्टोरीज आर क्रिएटेड अराउंड इट। व्हेन आई आस्क्ड सेल्फी, समबडी सेड स्टोरी। वो क्या है वो मुझे जानना है, पर मैं एक बात बताता हूँ, केयरफुली सुनना। अनफॉर्चुनेटली एक लड़की, बड़ी एक पॉपुलर लड़की थी, वो सेल्फी लेते वक्त शी लॉस्ट हर लाइफ एज शी फेल इन एक दरी में गिर गई वो, यहीं सह्याद्री के इसमें। बाय गॉड्स ग्रेस यू आर हियर, लेट अस थैंक गॉड। अनफॉर्चुनेटली वो सेल्फी लेते वक्त वो लड़की दरी में गिरी और गई वो। ये न्यूज़ आज आई, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ क्या है, एक वो है वाटरफॉल है। हाँ, वाटरफॉल के नीचे 4 लोग बच्चे, ऐसे यंग लड़के लड़कियां खड़े हैं, एंड दे आर टेकिंग सेल्फी, एंड द हेडलाइन सेज पावसाळ्यात धबधब्याचा आनंद लुटताना तरुणाई. सेम न्यूज़पेपर. Just a day before, they are saying that there is a risk and one person has lost her life, and the next day they are giving the another headline saying ki see how fantastic and they are enjoying taking the selfies. We have to be a little serious while we are creating such stories. थोड़ा एक भान म्हणतो आपण ज्याला मराठी में, वो रखना ज़रूरी है. मैडम आप यू टेक केयर एंड गेट वेल सून. और ये एक एग्जाम्पल, इनका एक लगा दो ना एक फ़ोटो कि व्हाट सेल्फीज कैन डू. गले में हाथ आ गया है. अच्छा, तो ये फोटोज का स्टोरीज मतलब क्या करते हो? कैन समबडी टेल मी? मैं भी सुनता हूँ ये वर्ड आजकल. वगैरह माने क्या? माने क्या? स्टोरी माने क्या? कैन समबडी टेल मी? माने क्या करते क्या हो? व्हाट डू यू डू? ओके. स्टेटस अपडेट होगा मतलब क्या होगा कि भाई तुम यहाँ अभी बैठे हो, अरे ये अपडेट हो गया स्टेटस के यहाँ पे है. ओके चलो ये मैं मान लेता हूँ. वैसे हमारे यहाँ होना या कैंटीन में होने से बाहर दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक्चुअली देखा जाए तो. पर फिर भी हमको अब आदत लग गई है कि अपडेट करते रहे कि भाई मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ. उससे पता नहीं क्या होता है पर होता है. चलो कर लिया. स्टोरी ये जो वर्ड है ना, उससे क्या हो रहा है? व्हाट इज इट दैट यू गाइज आर अचीविंग बाय क्रिएटिंग अ स्टोरी? मीनिंग व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग? हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? ओके, तो फोटो डाल रहे हैं तो उससे स्टोरी कैसे बनी ये मैं पूछ रहा हूँ. अभी चलो ये लड़की, सॉरी फॉर मी, डोंट माइंड इफ आई मे से, कि इनके हाथ में मेहंदी लगी है इस वक्त, करेक्ट? तो अगर ये कहे कि भाई ये शादी में गई थी या किसी फंक्शन में गई थी जहाँ मेहंदी निकाली, एक देयर इज अ क्रोनोलॉजी, करेक्ट? द फोटोग्राफ्स हैज अ सीरीज ऑफ नरेटिव. देन वी मे से कि देयर आर स्टिल इमेजेस विच आर डिस्क्राइबिंग अ प्रोग्रेशन ऑफ एन आइडिया, a progression of a journey, a progression who is taking us from one information to the other, to the other, to the other. इसी हॉल में अगर 10 फोटो निकालते हो तो हाउ इज इट क्रिएटिंग अ स्टोरी? इज माई क्वेश्चन. थिंक एंड आंसर. मुझे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो चीज है जो आगे ये डिसाइड करने वाली है कि हम किन किन लोगों पे राज करने वाले. हम लोग क्या करते हैं जब हम इसको फॉलो करते हैं? What do we do? आप एक बताओ स्टोरी. चलो एक स्टोरी आप बताओ. अभी आपने जो रिसेंटली क्रिएट किया है, क्या स्टोरी है वो? कौन बताएगा? एनीबडी? फील फ्री. एज आई सेड, देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, सो डोंट माइंड standing up and saying what you do.
लेट अस अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई चीज़ें हम बिना समझे ही कर रहे हैं। किसी ने उसको नाम दिया स्टोरी, हम में से किसी ने सोचा कि क्या हम सच में स्टोरी बोल रहे हैं? स्टोरी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट हैज़ अ बिगिनिंग, इट हैज़ अ मिडल, इट हैज़ एन एंड। एक जगह वो शुरू होती है, फिर दूसरे जगह जाती है और एक जगह जाके ख़त्म होती है। स्टोरी प्रोग्रेशन जब होती है, हमको नई नई चीज़ें मिलती है, उसमें से धीरे 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 देयर आर कैरेक्टर्स हु गेट डेवलप्ड, हु गेट फ्लरिश, दे हैव अ पर्पस, और वो पर्पस के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर उनके कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो प्रॉब्लम में बदलता है, फिर ड्रामा आता है, सॉल्यूशन आता है, रेजोल्यूशन आता है। ये प्रोग्रेशन है ना स्टोरी का। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, ये स्टोरी है। एज सुन एज आई से किंग, हम सबके दिमाग में अपना अपना एक रेफरेंस है, राजा कब आएगा। मेरे दिमाग में छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, एक स्पेसिफिक, अनलेस आई स्पेसिफाई द टाइम, देन सबके दिमाग में एक अपना अपना रेफरेंस राजा का इमेज आएगा, करेक्ट। तो वो अगर मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, दैट बिकम्स माई बिगिनिंग ऑफ माई स्टोरी ना। वो मैं पहला लाइन ये मैंने बोला कि एक राजा था, तो आई एम बिगिनिंग ऑन अ स्टोरी। फिर उसके लाइफ में क्या हुआ, फिर उसके लाइफ में क्या हुआ, देन इफ आई एम टेलिंग अबाउट अ स्पेसिफिक किंग, देन वो स्टोरी वैसे वैसे आगे बढ़ती जाएगी। जो कि मैं कहना चाह रहा हूँ, 10 पिक्चर्स एक साथ एक के बाद एक लगाने से क्या स्टोरी हम बता रहे हैं, ये मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर डिजिटल डोमेन राइट नाउ। हमारे डिजिटल वर्ल्ड में यही चीज हो रही है, और उसको हम कह रहे हैं पावर। इट इज कंसिडर्ड टू बी द सॉफ्ट पावर। ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग? अभी सर जो कह रहे थे ना, एआई और ये सारी चीजें हैं। आप फॉर एग्जांपल, आपने मान लो कि अगर मैंने अपने घर के टीवी में महाराष्ट्राची हास्य जत्रा देखा फॉर एग्जांपल, 2 दिन 3 दिन मैंने लगातार देखा। 4th डे मेरे मोबाइल पे पॉपअप कैसे आता है, यू वॉच दिस। जैसे मैं यूट्यूब खोलता हूँ, पहला पॉपअप आता है, उसको कहते हैं एल्गोरिदम, है ना। उससे आता है कि भाई तुम, मतलब क्या है, कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। मैं तो किसी को स्टोरी बोलने गया नहीं हूँ, मैं तो देख रहा हूँ जो स्टोरीज मैं देखना चाहता हूँ, पर इसका मतलब क्या है, कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, करेक्ट। दैट मीन्स जब तुम अपनी ही स्टोरी बता रहे हो, उसका मतलब है कोई वो देख रहा है, और वो हो सकता है वो भी हो जो आप नहीं चाहते जो देखे या देख रहा हो। इट इज इवेंचुअली व्हाट इट इज, यू आर क्रिएटिंग अ कंटेंट। एक ऑडियो विजुअल कंटेंट हम जनरेट कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है कोई म्यूजिक लगा हो या कोई इमेज लगी हो जो आप चाहते हैं कि लोग देखें। मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जब आप कह रहे हो स्टोरी, तो क्या स्टोरी है, अभी आपने क्या स्टोरी बनाई, इज व्हाट आई एम आस्किंग। एंड इफ यू डू नॉट नो द आंसर, देन व्हाट यू हैव बीन डूइंग फॉर सो मेनी इयर्स नाउ। अगर तुमको यही नहीं पता कि क्या स्टोरीज आप बना रहे हो, तो आप इतने 2-4 कितने सालों से कर रहे हो, क्या कर रहे हो इतने दिन। जबकि हमारे देश में एक ट्रेडिशन है स्टोरी टेलिंग की। हमने अपने घरों में अपने सीनियर्स से स्टोरी सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए हैं। हमारे घर के ही नहीं, हमारे एक ज़माना ऐसा था जो पड़ोस वाले के भी हमको स्टोरी सुनाते थे, एंड वी वर हैप्पी। हम लोग बड़े खुश थे उस ज़माने में कि जहाँ भी भूख लगे वहाँ खाना भी खाते थे, जहाँ भी मज़ा आए वहाँ खेलने लग जाते थे, जहाँ जो मन करे वहाँ करते थे। अब उस पर आ गई रिस्ट्रिक्शन। स्टोरी में जो एक एलिमेंट होता है ना, सरप्राइज, कि मैं घर गया, सडनली मैंने देखा कि मेरा घर खुला है और बाहर एक अननोन पेयर है चप्पल के, जूते के। तो जो सरप्राइज आता है कि अरे ये कौन है जो मेरा घर खोल के बैठा हुआ है। मैं जाके देखता हूँ तो मेरा मामा जब होता है, ऐसा मैं पाता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अरे मामा तुम कब आए। तो वो कहता है मैं इस एरिया में आया था, सोचा लंच तुम्हारे यहाँ करके फिर निकल जाऊँ। वो ज़माना है जब मेरे माँ पिताजी काम पे जाते थे, मैं घर पे खाने के लिए अकेला आता था स्कूल से। वो सरप्राइज है, वो गायब हो गया ना। अब कहाँ मामा आ रहा है बिना पूछे बिना बताए। आ रहा है क्या कोई मामा बिना पूछे, हेलो आप लोग है क्या, आऊँ तो चलेगा क्या, खाना खा के ही आऊँगा। वो हमारी लाइफ की स्टोरी से भी वो सरप्राइज एलिमेंट निकल रहे हैं। अभी 2 दोस्त रास्ते में, अरे कुटुन का हिस्सा किधर, ऐसा होता ही नहीं। इसको भी पता है ये कहाँ जा रहा है, इसको भी पता है ये कहाँ जा रहा है। सबको पूछे बगैर हम कर ही नहीं रहे कुछ।
फिर पूछ रहा हूँ, आप जो स्टोरी बना रहे हो मतलब कर क्या रहे हो? व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग? हमको नहीं पता, उसका कारण हमने बहुत ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाया वहाँ पे। स्टोरी में एक प्रोग्रेशन होता है, वो स्टिल इमेजेस में भी हो सकता है। अभी मैंने बताया घोड़ा, स्टिल इमेजेस ही थे, वो एक के बाद एक लगाया, पता चला वो भाग रहा है। अभी ये कैमरा रोल किया, एक मोटर थी ऐसे खर्र ऐसे आवाज आता था उसका, उस पे शूट हुआ, पता चला ये बन गया। जो चीज अब मैं दिखाने वाला हूं वो हिस्टोरिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेज है। आप सब देख पा रहे हो, एक रेलवे प्लेटफॉर्म है इधर, करेक्ट है? दिखाता हूं हुआ क्या इधर, और फिर उसको रिलेट करेंगे आज की तारीख में जो हम डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ये वो फिल्म है ल्यूमियर की बनी हुई जिसका नाम है अराइवल ऑफ अ ट्रेन। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं वैसे ही पेरिस के ग्रैंड कैफे नाम की एक जगह थी, वहाँ लोग टिकट खरीद के आए थे टू सी द फर्स्ट एवर फिल्म्स ऑफ ल्यूमियर ब्रदर्स। उसमें एक फिल्म ये भी थी अराइवल ऑफ द ट्रेन। अब हुआ क्या कि ये काफ़ी दूर है और इमेज छोटी है, एंड नाउ वी आर सराउंडेड बाय इमेजेस, तो हमको इसकी कोई नॉवेल्टी बची नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक सेकंड आओगे इधर, हाँ कम, अगर मैं आप लोगों को सिर्फ ये साइन दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा ना ये क्या टी शर्ट है, करेक्ट? क्या है ये? किसी कंपनी का लोगो है। मतलब क्या, कौन सी कंपनी है? नाइकी है, करेक्ट? यहाँ कहीं लिखा है नाइकी, क्योंकि हमको इमेजेस के बारे में अब पता, बैठ जाओ थैंक्स, क्योंकि हमको इमेजेस के बारे में ऑलरेडी पता है। जहाँ पे आदमी का चित्र लगा हुआ है वहाँ हमको बताने नहीं पड़ता कि ये जेंट्स टॉयलेट है, करेक्ट है ना? क्योंकि उसका एक इमेजरी एसोसिएशन हमारे दिमाग में रेडी है। ये मूविंग इमेजेस तब की है जब लोगों को मूविंग इमेजेस की कोई आइडिया ही नहीं थी। तो जस्ट इमेजिन करो, ये ग्रैंड कैफे में हम लोग बैठे हुए हैं पेरिस में, और यहाँ इतने बड़े पर्दे पे ये इमेज चल रही है। हुआ ऐसा कि जब ये ट्रेन स्टेशन पे आई तो लोग भाग गए और वो कैफे खाली हो गया जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। ट्रेन जैसे पास आती गई, वो इमेज जैसी बढ़ती गई, लोगों को लगा कि ये ट्रेन अब हमारे ऊपर से चली जाएगी, एंड दे जस्ट रैन ऑफ। उनको पकड़ के वापस लाना पड़ा। ये इम्पैक्ट था सिनेमा का, और ये इम्पैक्ट है स्टोरी टेलिंग का, जिसको मेरे ख्याल से हमको बहुत सीरियसली लेने का बहुत ज़रूरी है। द वर्ड, हमारे जो सीनियर है साठे साहब, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है आज के इंटरैक्शन का, वो है पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, एंड इट इज़ वेरी पावरफुल। वो हमें बतानी है ना स्टोरी जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें पावर है। वो क्या पावर है वो समझना है। अगर एक सिर्फ ट्रेन आती है और लोग उसको इमेज देख के डर के भाग जाते हैं, ये तो एक तरह का रील ही हुआ आज की पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो। आज कोई भागेगा क्या इसको देख के? आप लोगों के दिमाग में भी आया क्या कि लोग भागे होंगे? हंसने की बात है आज की तारीख में, क्योंकि पुल से बहुत नीचे पानी बह चुका है। आज की तारीख में इस इमेज का, हमारे रादर किसी भी इमेज का, जब तक वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अलग ऐसी कुछ न हो तब तक हमको उसका नॉवेल्टी नहीं पता। इस वजह से हम उस चीज़ में लगे हुए हैं कि नया क्या मिल रहा है, और जब तक नया नहीं मिल रहा है हम थोड़ा पुराने से काम चला रहे हैं। आज जो प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर रहे हो, कल कोई और चीज़ आ जाएगी, आप यहाँ से वहाँ चले जाओगे, फिर वही हाउ आर यू पार्किंग लॉट में, एक नई जगह हाउ आर यू बोलने के लिए। वो लोग वही हैं। जब हमने शुरू किया, एक ऑर्कुट करके एक चीज़ थी, वो पीछे पड़ गई, फिर एफबी आ गया, वो टेक ओवर हो गया पूरा चीज़, और फिर हम एफबी पे लग गए, फिर धीरे धीरे और चीज़ें और जगह आने लग गई। अब तो आज की तारीख में आपके हाथ में इतनी पावरफुल चीज़ है जिसको यूट्यूब बोलते हैं, वहाँ पे इतना कंटेंट है, और अच्छा कंटेंट भी है। मतलब वी मस्ट बी वेरी थैंकफुल कि अभी देखो ना कितना आसान हो गया हमारे लिए फिल्म देखना यहाँ बैठ के। जब इन्होंने बनाई 130 साल पहले, सोचा भी होगा कभी कि टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ में बच्चे हमारे बारे में बात करेंगे? वो घोड़ा जो फैक्ट्री से निकला, उसको पता है कि हमारे उसके बारे में लोग यहाँ बात कर रहे हैं?
अमर हो गया वो। तो एनी इमेज दैट यू क्रिएट ना, इट हैज़ द सेंस, इट हैज़ दैट पावर ऑफ गेटिंग इमॉर्टल। एक बार सिनेमा के पर्दे पे कोई आ गया मतलब उसको अमरत्व हो गया, वो रहेगा, उसके बाद भी वो रहेगा, वो लाइफ लॉन्ग से भी ज़्यादा रहेगा वो। दैट इज़ वॉट इट इज़। So we have to be very careful when we are dealing with stories and when we are dealing with stories which we are telling to people. एक जावेद साहब ने बहुत बढ़िया बात करी थी एक बार ऐसे इंटरैक्टिव सेशन में कि हमारे यहाँ कथा कथन की बड़ी लंबी परंपरा है, उसको अलग अलग नाम देते हैं हम। कीर्तन प्रवचन क्या है? कथा है ना, हम लोग कथा, वो जो खड़ा है आदमी वो कथा बता रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, फिर वो माइथोलॉजी से हो सकती है, फिर वो कंटेम्पररी कनेक्शन लेके हो सकती है, कुछ हो सकता है। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई कि एक राजा है, उसके महल में एक आदमी है जो कि मौलवी है और वो स्टोरी बताता है। उसका काम है राजा को कथा सुनाना। वो कथा सुना रहा है 1 महीना 2 महीने 3 महीने हो गए। फिर उनको लगा कि हज पे जाना चाहिए, यात्रा पे जाना चाहिए। तो वो राजा के पास आया परमिशन मांगने के, साहब मैं तो जाना चाहता हूँ। तो बोले ये स्टोरी का क्या होगा, आपका राजा कथा का जो राजा है वो भी वॉर पे निकलने वाला है। तो वो कहते हैं डोंट वरी, मेरा जो शागिर्द है, सबसे अच्छा शागिर्द है, उसको मैं आपके पास सुपुर्द करके जा रहा हूँ, मेरी कथा वो आगे बढ़ाएगा। जहाँ तक मेरा राजा है जो अभी वॉर पे निकलने वाला है, तो माय शागिर्द विल कंटिन्यू दैट। तो इसे ओके, तो उसको मिलवाओ। तो वो आए मौलवी साहब लेके, उन्होंने मिलवाया उसको और फिर वो स्टोरी आगे बढ़ेगी, ऐसा हुआ तय। तो फिर उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया उनका, पैसे वैसे दिए, घोड़ा दिया, आप जाओ यात्रा करके आओ, 6 महीने लगेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई साहब निकल गए और यहाँ पे शागिर्द जमा हो गया दरबार में रोज़ सवेरे जाके कथा सुनाने का। अब 6 महीने बाद वो मौलवी साहब यात्रा करके वापस आए। पहले गए राजा के पास सलाम दुआ करने कि भाई मैं आ गया। अब वो अंदर से तो डरे हुए हैं कि पता नहीं भाई, मैंने तो अच्छा शागिर्द दिया था पर उसने स्टोरी का क्या किया है, वो तो राजा का एक्सप्रेशन देख के पता चल जाएगा कि भाई अच्छा था कि खराब था जो भी। तो राजा देखा बड़ा खुश। तो मौलवी साहब की जान में जान आ गई। बोले अच्छा है भाई, राजा खुश है, मतलब मेरे भाई ने, शागिर्द ने अच्छा काम किया है। तो नमस्कार हुआ। बोले कल से मैं ज्वाइन करता हूँ। बोले ठीक है आप तो ज्वाइन करो, उसको भी लेके आना, वो भी अच्छा स्टोरी बताता है। और वो तारीफ़ करने लग गया उसकी, शागिर्द की। तो मौलवी साहब चले गए अपने घर और उस शागिर्द को बुलाया। बोले राजा तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रहा था भाई। तो बोले हाँ साहब, आपसे सीखा है थोड़ा बहुत, तो वही मैंने जारी रखा था, तो बस 6 महीने कैसे निकल गए पता नहीं चला। तो बोले ठीक है अच्छा है, कल से मैं स्टोरी आगे बढ़ाऊंगा। मुझे ये बताओ कि जो राजा मैं छोड़ के गया था, वॉर पे निकलने वाला था महल से, वो अब कहाँ पहुँचा है? 6 महीने हो गए। तो वॉर तुमने जो छेड़ी थी वो कहाँ तक बढ़ी है? राजा जीत रहा है कि हार रहा है? तो शागिर्द कहता है मौलवी साहब क्या हार जीत की बात कर रहे हो? आपके एब्सेंस में आपके कथा का राजा महल से निकल सकता है क्या? बोले मतलब? बोले आपका राजा वही है जहां आप छोड़ के गए थे। 6 महीने तक मैं उसकी तैयारी में ही लगा हुआ हूं। अभी तक आपका राजा महल से वॉर के लिए निकला नहीं है, अब आप आ गए हो, कल आप उसको बाहर निकालो। ये है इंडियन टेलीविजन। हमारे यहाँ टेलीविज़न पे क्या हो रहा है? 6 महीने शादी की तैयारी हो रही है और शादी होगी कि नहीं ये पता नहीं है, क्योंकि कोई और आ जाएगा, कुछ और कहेगा, फिर कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा। करेक्ट? व्हाट इज दिस? स्टोरी टेलिंग। हमारी इंडस्ट्री ऐसी महानुभाव जैसी भरे हुए सबके, मान लो आपको पता नहीं, आप शायद बच्चे ही बहुत रहोगे तब, एक शो आता था जिसमें एक हीरो जो है वो मर गया स्टोरी में, फिर टीवी सीरीज में एक हीरो मर गया, ठीक है। अब सारी दुनिया ने देख लिया कि वो मर गया। उसका सारा संस्कार करने में इन्होंने 15 दिन लगवा दिए। वो बहुत पॉपुलर था, कैरेक्टर बहुत पॉपुलर था वो, उसका नाम था मिहिर वीरानी, बहुत पॉपुलर। वो मर गया, सबने देखा वो मर गया, महिलाएं खूब रोई फुट फुट के। वो 4-8 दिन लोगों के घरों में खाना नहीं बना, क्योंकि टीवी पे एक हीरो मर गया। फिर लोगों को पता चला रही है तो मर गया, ये तो नहीं चलेगा। तो लेडीज़ ने क्या किया, उन्होंने मोर्चा निकाला चैनल के ऑफिस में, पुलिस बुलानी पड़ी, एंटी राइट वाले, मतलब वो दंगे रोकने वाले वो बुलाने पड़े, व्हीकल ये वो सब। और अब पथराव होगा
चैनल के ऑफिस में, तो चैनल के हेड थे, वो आए बाहर, मीटिंग हुई, उनकी बात हुई, बोले नहीं कुछ भी करो उसको वापस लाओ। तो वो क्या कह रहे, वो क्या कहेगा बेचारा, वो कह रहा है भाई हाँ आपने देखा, हमने देखा, वो मर गया है। अच्छा, अगर टाइमलाइन देखी जाए तो उस सीरियल की जो सबसे बड़ी कैरेक्टर थी ना, वो करीब 200 साल की थी महिला, इतने सालों से जी ही रही है वो। हाँ, मतलब उसका अगर टाइमलाइन देखा जाए तो वो 200 साल की थी तब, जब तक सीरीज चल रही थी। इवेंचुअली क्या हुआ कि चैनल को मानना पड़ा कि मिहिर वीरानी वापस आएगा, तो जिसको हमने वूफ कर दिया है वो वूफ करके वापस आ गया वो। ये है कंज्यूमर का पावर के। और सारी लेडीज थी जो मोर्चा लेके गई थी वो। अच्छा, वो और उस टाइम पे मतलब ये कोई पॉलिटिकल चीज नहीं थी, इट वाज अ प्योर ऑडियंस रिएक्शन। और रो रही है धुआंधार, मिहिर वीरानी को वापस लाओ। अरे भाई मर गया, नहीं नहीं जिंदा करो। और वो आया, वही कैरेक्टर आया, वही एक्टर आया। तो स्टोरी में लोग कितने घुसते हैं। एक दो फिल्म्स ऐसी है हिस्ट्री में जिसमें हीरो हीरोइन सुसाइड करते हैं, उसके बाद एक चलन ही निकला, फिर जूते चुराने लग गए एक फिल्म के बाद लोग। आजकल हम पनीर खाते हैं हर जगह, ये सारा सिनेमा का असर है। हमारे यहाँ वो हजम होता है कि नहीं वो अलग बात है, वो जहाँ हजम होता है वहाँ खाने के लिए वो बना है, पर हम कहीं भी खा रहे हैं उसको। वो एक पर्टिकुलर जगह के लिए बना है, उस वेदर के लिए बना है जहाँ पे दूध बड़े मात्रा में बनता है, इस वजह से वो पनीर बनता है। पर अब हम लोग तो पनीर को सब्जी मानने पे लग गए। वो क्या है, वो स्टोरी है जो हमने खरीद ली है कि पनीर एक सब्जी है। आप सोचो ना, आप होटल में जाते हो, आप पूछते हो अच्छा सब्जी क्या, वो कहता है पनीर की लाऊं क्या। अबे भाई पनीर सब्जी ही नहीं है, तो वो बेच चुका है आपको स्टोरी कि पनीर एक सब्जी है। करेक्ट है। अब इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि आप लोग जो कर रहे हो, हमारे पास स्टोरी टेलिंग की पावर बहुत ज़्यादा है। और आजकल हम सोशल नेटवर्क्स पे भी ये देखते हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से फटाक से वायरल हो जाती है। वायरल होना मतलब क्या, उसको लोग अपील समझ में आता है लोगों को, उसको पकड़ लेते हैं, उसको उठा लेते हैं, एंड देन देर आर वेरी सेंसिबल थिंग्स दैट ऑल्सो कम टू पब्लिक, एंड एट टाइम्स, मेनी टाइम्स वी ऑल्सो सी दैट देर आर न्यूसेंसेस ऑल्सो दैट कम्स टू पब्लिक, कि जिसकी ज़रूरत है, बहुत ही छोटी चीज़ है, वो वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, उसको बहुत बड़ा रूप मिलता है। ये पावर है, और उसमें बहुत लोगों के बहुत समय भी वेस्ट होता है। और दूसरी तरफ सोसाइटी में हो रही अच्छी चीज़ें, ये हो सकता है हमारे पास नहीं पहुंचती। किसी खेड़े में, किसी छोटी जगह में कोई अगर एक टीचर अच्छी स्कूल चला रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा है, और वो खुद के जेब से पैसे खर्च कर रहा है, बच्चों को ला के पढ़ा रहा है, ऐसी कोई चीज़ हमारे तक पहुंचती है, तो हम हो सकता है उसको उतना सीरियसली नहीं देखते। उसका कारण है उसमें ड्रामा नहीं है, उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ नहीं है, या अगर हो भी तो हम उसको देखने की हमारी इच्छा नहीं है। इस ज़माने में है ना हम लोग, अगर ड्रामेटाइज करके नहीं बताया जाए तो हमको वो चीज़ पसंद ही नहीं आती है। वो ड्रामा क्या है, स्टोरी टेलिंग की पावर है। और फिर एक छोटी सी जो अभी वो एक अच्छी फिल्म आई, काय ते नाव त्याचं, आता थांबायचं नाही, मराठी में आई, बहुत अच्छी फिल्म। अच्छा, स्टोरी ऐसा नहीं कि हमने उस तरह की स्टोरी पहले देखी नहीं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ समबडी हु वांट्स टू एजुकेट देमसेल्व्स एंड ऑल्सो ग्रो। हमने पहले भी ऐसी पिक्चरें देखी है जो कि छोटा हीरो है, वो उठता है और हीरो बनता है। तो ऐसा नहीं कि हमने पहली बार देखी, मगर वो अच्छी बनी है और लोगों को पसंद भी आई। अब लोगों को क्या पसंद आए ये अगर पता चलता तो क्या बात थी। तो सिनेमा में भी यही है कि रात को मैं सोया कुछ चीज़ को दिमाग में लेके, और सवेरे उठता हूँ और फिल्म बन गई। ऐसा होता तो क्या बात थी, मगर ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उस मेहनत का हम लोगों को अंदाज़ा नहीं है जो हम रील्स पे डाल रहे हैं टाइम। एक फिल्म बनने के लिए जितना टाइम, एनर्जी, पैसा और लोगों की मेहनत ये जो लगती है, उसका हमको जो वीडियो हम खींचते हैं उसका कोई
उनको कुछ उसका सेंस नहीं लगता उधर, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है और मोबाइल में इनॉर्मस पावर है। आप लोगों को मैं जब बताना चाह रहा हूँ, हम सबके पास स्मार्टफोन है, करेक्ट। हमने इंस्टीट्यूट में मतलब FTI के थ्रू हमने एक स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग का कोर्स शुरू किया। वो इतना पॉपुलर हो गया है, उसका कारण ये है कि हमने मोबाइल को सीरियसली लिया ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि स्टोरी क्या आप लोग बता नहीं पा रहे हो। मोबाइल, अपने पास जो मोबाइल है उसमें इतनी पावर और इतनी कैपेसिटी है कि आप उस पर स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, आप उसको शूट भी कर सकते हो, उसी पे आप साउंड डिज़ाइन भी कर सकते हो, उसी पे आप एडिट भी कर सकते हो। ऐसे कई सारे ऐप्स है और उसी मोबाइल से आप सीधा उसको यूट्यूब पे चढ़ा सकते हो, जहाँ पे आपके लिए लोग रुके हुए वेट कर रहे हैं कि आप देखें इसको। और ये सारी चीज़ मतलब आपको लैपटॉप तक की भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल, सिर्फ सेलफोन के थ्रू आप एक फिल्म बना सकते हो। और द बेस्ट थिंग इज हम सबके पास अपनी अपनी एक अलग स्टोरी है बताने के लिए, सबके पास है। हम सब अलग है एक दूसरे से, हम लोग बहुत ज़्यादा है, हमारे पास हमारा नंबर बहुत ज़्यादा है, पर उसका पॉजिटिव चीज़ ये है कि हमारे पास पावर भी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमने सोचा नहीं उसके बारे में। और हम सबके पास अपनी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी और हमारे सबके पास अलग अलग एक यूनिक स्टोरी है बताने के लिए, पर हमने उसको बहुत सीरियसली अभी तक लिया ही नहीं है। जो चीज़ बोलते फ़ोन, डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये सबसे बड़ा पावर हमारे हाथ में है और उसको हमको यूज़ करना है। कोई भी डाउट आया तो हम लोग जाते हैं गूगल पे, और हम गूगल करते हैं। अगर मैं आपको पूछूं नॉस्टैल्जिया क्या है, आप सब लोग बातें करते हो, अगर 2 साल पहले क्या हुआ था, हम वहाँ गए थे, कितना मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया, हमको वापस जाना चाहिए, हमको एक ट्रिप पे जाना चाहिए, एक्सेट्रा 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 करे। वो क्या है? नॉस्टैल्जिया है। वी लाइक बीइंग इन नॉस्टैल्जिया एंड वी आर वेरी हैप्पी बीइंग इन नॉस्टैल्जिया। इफ़ यू गूगल यू वुड रियलाइज दैट नॉस्टैल्जिया इज़ अ मेडिसिनल टर्म। वो एक प्रकार का रोग है और उस पर दवाई है, पर हम नॉस्टैल्जिया को बड़े पॉजिटिवली देखते हैं। हमको बड़ा मज़ा आता है उस ज़माने में रहना जहाँ एक ज़माने में हम बड़ा खुश हुआ करते थे, या इस पर्टिकुलर जगह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करेक्ट। हो ये रहा है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, उसको गलत फहमी में हम लोग नॉलेज की तरह ले रहे हैं। 2 चीज़ों में फ़र्क है। गूगल पे हमें जो मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन है, आपको उसको नॉलेज में कन्वर्ट करना है, जिसको फिशिंग बोलते हैं ना। इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी, मगर उसमें से मुझे क्या चाहिए ये कैसे आपको पता चलेगा? जब आप उसमें घुसोगे और वो निकालोगे जो सवेरे सर बोल रहे थे। यू हैव टू बी अपडेटेड। हज़ारों चीज़ें मिलेंगी, मगर उसको नॉलेज में कैसे बनाओ, कैसे कन्वर्ट करोगे? फंडामेंटली स्टोरी टेलिंग क्या है? आपको क्या याद रहता है जो कि आपको मोबाइल के ज़रिए आप बोल सकते हो? आपको वो चीज़ याद रहती है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और वो छोटी से छोटी चीज़ होगी, आपको इम्पॉर्टेंट होगी, हो सकता है इनको इम्पॉर्टेंट ना हो। वो तुम्हारे लिए जो बहुत ज़रूरी है वो हो सकता है इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं हो। एक बार मैं, हमारे सारे कज़िन्स सिबलिंग्स, हम लोग मेरे मौसी के घर पे थे, तो मेरे नाना जी आए और वो चिक्कू लाए थे, थैली ऐसे लेके चलते थे, तो चिक्कू लाए, वो 1 दर्जन चिक्कू लाए। तो मेरी छोटी कज़िन को उन्होंने बोला इसको धो के लाओ, तो थैली पकड़वा दी और वो चप्पल उतार के आके मौसी के घर में सोफे पे बैठ गए। और मैं था, मेरी 2-3 कज़िन्स और 4, हम 6 लोग थे, सब लोग मिला के 1 दर्जन चिक्कू वो लाए थे। जब तक चप्पल उतार के वो सोफे पे बैठे, वो मेरी कज़िन गई और वापस आई, और वो एक प्लेट में ऐसे चिक्कू उसने नाना जी के सामने पकड़े। तो उन्होंने उसकी तरफ देखा, फिर ऊपर देखा, फिर उसकी तरफ देखा, और उसको पूछा कि मैंने तुमको क्या बोला था? तो बोला धो के लाओ। ठीक है, तुम क्या करके लाई हो? तो वो एकदम से सरप्राइज हो गई, उसको एक्सपेक्टेड नहीं था ये सवाल, तो वो देखने लग गई।
तो मेरे नाना जी उसको कहते हैं, मैंने तुमको धोके लाने को बोला था चिक्कू, तुम उसको गीले करके लाई हो। तो वो एकदम सटपटा गया। अच्छा छोटी थी, उसको समझ में नहीं आई बात, मैं थोड़ा बड़ा था, वो बात मुझे समझ में आई और आज तक याद है। इस बात को 35 साल हो गए। किसी चीज को करना और किसी चीज को करने जैसा करने में जो फर्क है वो यही फर्क है। उनको एक्सपेक्टेड था धोके लाएगी, वो नल के सामने पकड़ा लेके आई। मगर इतनी छोटी चीज मुझे याद है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और अब मैं जब आपको ये बता रहा था, आपके सबके दिमाग में कोई एक नाना जी आ गए होंगे, क्योंकि आपके रेफरेंस में एक अपना अपना कोई नाना नाम का कैरेक्टर है ना। नाना जी मतलब माँ के पिताजी को हम नाना जी बोलते हैं। और मेरी कजिन जो भी है वो भी हो सकता है कोई आई होगी। तो ये रेफरेंशियल जब है तब वो अपने आप निकल के आता है। हमने जब तक हैरी पॉटर को फिल्म ने नहीं देखा, हम सबका अपना अपना एक हैरी पॉटर था। जैसे ही हमने इमेज में उसको देख लिया, अब हम उसके बाहर नहीं जा सकते। भारत में करीब 56 अलग अलग तरह के देवदास है। फिल्म जो है देवदास 56 अलग अलग तरह के, असमीज में 2 बार है, बंगाली में, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु, मलयालम में भी देवदास बने। जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तब तक मेरी इमेजिनेशन चल रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पिक्चर्स के जरिए स्टोरीज बोल रहे हो। अब इंटरप्रिटेशन के लिए कोई जगह खाली नहीं है। व्हेन आई एम रीडिंग द वर्ड्स आई हैव स्पेस टू इंटरप्रिट। ये गांव था, उसके बीच में से नदी बहती थी, जिस वजह से गांव 2 जगह डिवाइड हो गया था। इस तरफ ये लोग रहते थे, उस तरफ वो लोग रहते थे। तो हम ये क्या है और वो क्या है ये सोचने लग जाते हैं। फिर नदी अचानक से बीच में कैसे बहने लग गई ये हम सोचने लग जाते हैं। यही चीज़ आपको अगर दिखाई जाए तो आपकी इमेजिनेशन बंद। स्टोरी टेलिंग की डिजिटल टेक्नोलॉजी में पावर यही है कि आप सब लोग वर्ड्स में नहीं विजुअल्स में चल रहे हो और उसको सपोर्ट है ऑडियो का। ठीक है, ये हो गया 40 और 8 48 12:50। अब 10 मिनट में सवाल लेना चाहता हूँ। क्वेश्चंस इफ एट ऑल देयर आर एनी, और देयर में भी नन। अच्छा सच सच बताना, जब मैं बात कर रहा था कितने लोगों ने एक बार पट से जाके व्हाट्सएप पे बाहर आए, गए और आए? कोई नहीं? और अगर समझ लो कि 10 से 6 व्हाट्सएप बंद हो जाए, सवेरे 10 से शाम को 6 बजे से ऑफिस टाइम होता है, मान लो व्हाट्सएप बंद हो जाएगा तो क्या होगा? हम जब थे, अभी भी है मतलब, ऐसा नहीं कि आते आते मैं इमॉर्टल बन के आया हूँ, नहीं, हम जब थे तो कहाँ था व्हाट्सएप? हम तो नीचे खड़े हो गए, ए बाबू चल ना बैटिंग है, ऐसे ही आवाज़ लगाते थे। टॉस हैज बीन वन, वी हैव इलेक्टेड टू बैट, ऐसा कभी व्हाट्सएप था ही नहीं। आवाज़ लगाते थे, वो भाई आता था भाग के बैटिंग है करके। तो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इसके बगैर नहीं चलता, चल सकता है। थैंकफुली अब हमारे पेट्स जो है उनके पास अब ये नहीं है अभी कि भाई उसको भी बोलो आजा भाई तेरा खाना लग गया, तो मेरा डॉगी जो है वो आएगा वेगिंग टेल की भाई साहब ने बोला खाना लगा। ऐसा थैंकफुली अभी तक नहीं है। वो सीधी सीधी बात करते हैं उससे। मेरे घर के पीछे मोर आते हैं तो उनको ये बताना थोड़ी पड़ता है कि 7 बज गए भूख लग गई, या 7 बज गए अब ये खाना देगा, अपने आप ही आ जाते हैं। तो कम्युनिकेशन तो है, क्लॉक, टाइम क्लॉक भी कुछ है, बॉडी क्लॉक कुछ है। कैसे तोते को पता चल जाता है अगर कि नहीं उठा आदमी तो बैठो खिड़की पे और बोर जोर से चिल्लाओ इतना कि उठे इवेंचुअली, और मिर्ची पेरू कुछ खिलाए मेरे को। व्हाट्सएप तो है नहीं उनके लिए थैंकफुली।
पर कम्युनिकेशन तो चल रहा है। तो हमारा ऐसा क्या हो गया कि हमारा काम इससे नहीं चलता। यस, आपको कुछ जो भी आपने दिखाया, जो मूवी दिखाया उनका स्पीड थोड़ा सा नेचुरल से ज़्यादा था, तो उसके बारे में मुझे आप बताना चाहेंगे कि मतलब वो स्पीड, मतलब अब मैं भी कोई पुरानी मूवी देखता हूँ। हो गया। ये जो सिनेमाटोग्राफ बना था, तो इसकी खासियत इस इंस्ट्रूमेंट की ये थी कि ये शूट भी करता था, प्रोजेक्ट भी करता था, और इन्होंने उसका पेटेंट ले लिया और अपने एजेंट्स दुनिया भर में भेजे। मतलब कोई आल्प्स में भी चला गया, कोई इंडिया में भी आ गया वो मशीन लेके, और फिर उन्होंने हर जगह जगह जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने उसको प्रोजेक्ट मतलब शूट किया, डेवलप किया, प्रोजेक्ट किया। इस चीज़ की खासियत क्या थी तब कि प्रोजेक्शन सिस्टम डेवलप नहीं था, जिसको हम प्रोजेक्टर बोलते हैं। आज की तारीख में हम कैसे प्रोजेक्ट करते हैं कि एक जगह कोई एक ऑपरेट करता है और फिर जहाँ जहाँ सैटेलाइट लिंक है वहाँ वहाँ हर जगह पिक्चर दिखाई पड़ती है। आप लोग अगर मिले, बहुत इंटरेस्टिंग एक फिल्म है, नाम भूल रहा हूँ, नाम याद आ जाएगा बता दूंगा। इट टॉक्स अबाउट फिल्म सिनेमा पैरादिसो, ये नाम है उस फिल्म का, ज़रूर देखना, यूट्यूब पे मिलेगी, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी किसी प्लेटफॉर्म पे। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि एक गांव में एक थिएटर है, दूसरे गांव में दूसरे थिएटर है, मगर प्रिंट एक ही आई है, कैन्स जो आते थे वो एक ही आए हैं। तो वो लोग क्या करते थे, इंटरवल के बाद की फिल्म उस गांव में चल रही है और इंटरवल की पहली फिल्म इस गांव में चल रही है, और फिर इंटरवल होने के बाद ये आदमी साइकिल पे भागेगा, फिर इधर रुकता है तो तब तक वहाँ से दूसरा आदमी भागेगा, फिर दोनों कैन्स एक्सचेंज करेंगे, फिर ये आएगा इधर, ये फिल्म चलेगी, वो वहाँ चलेगा या वो फिल्म चलेगी। ये तब की बात है जब प्रोजेक्शन सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट हो गई, जिसमें 24 फ्रेम्स पर सेकंड का रनिंग टाइम डिसाइड हो गया। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन होने के बाद नॉर्मल रनिंग मतलब 24 फ्रेम्स पर सेकंड, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना गया। आप चार्ली चैपलिन की फिल्म हम जब देखते हैं तो उसमें वो बहुत तेज़ चलता है, उसका कारण है नॉट स्टैंडर्डाइज्ड फिल्म रेट। तो अभी अगर मुझे स्लो मोशन किसी को दिखाना है तो मेरा फिल्म रेट बढ़ जाता है शूट करते वक्त, क्योंकि इवेंचुअली वो स्लो होके दिखता है। और अगर किसी को फास्ट भगाना है तो मेरा फिल्म रेट 24 के नीचे चला जाता है, 16, 8 इस तरह से। और फिर जब मैं उसको रिप्रोड्यूस करके चलाता हूँ तब जाके वो फास्ट चलता हुआ दिखता है, क्योंकि आप किसी भी प्रोजेक्शन में जहाँ फिल्म चलाओगे वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड ही चलेगी। अब नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में अब 30 सेकंड्स पर फ्रेम मतलब पर सेकंड भी आ गया रेट, तो उसको चलाने के लिए अलग अलग सिस्टम्स है। अब नाउ यू डोंट हैव टू पुट अ फिल्म, थ्रेड करो उसको प्रोजेक्टर के थ्रू, साउंड के थ्रू ले जाओ, फिर लैंप लगाओ, वो सारी चीज़ें अब नहीं होती, अब सीधे फाइल ही चलती है। तो ये इसके एसोसिएटेड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सिनेमा की स्टोरी होती है मगर सिनेमा के पीछे बहुत ज़्यादा स्टोरीज है। एक स्टोरी ऐसी है कि जो अभी ल्यूमिया ब्रदर्स की मैं बात कर रहा था, उनकी जो इंडिया में पहला स्क्रीनिंग हुआ था जुलाई में 1896 में, तो एक इंडियन था जिसके पास उस शो का टिकट था। वो हुआ था कोरोनेशन थिएटर, कालाघोड़ा में एक बिल्डिंग है वॉटसन होटल नाम की, अभी भी है, लकड़ी की बिल्डिंग है पुरानी, उसमें एक थिएटर था। उसमें पहला इंडियन स्क्रीनिंग हुआ 1896 में 7 जुलाई को। उसमें एक बंदे के पास टिकट था जो इंडियन था। जब वो फिल्म देखने गया, बिकॉज इट वॉज अ नॉवेल्टी, तो उसको मना कर दिया गया। Being Indian, he was not allowed to get into the theater and for that matter the hotel. तो उसने वो अपमान दिल पे ले लिया और उसने बोला कि मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा जहाँ पे किसी को भी आने जाने के लिए मुबलक होगी, सुविधा होगी, किसी को भी वहाँ जाने के लिए रोका नहीं जाएगा। तो उसने काला घोड़ा के पास की ज़मीन खरीदी और वहाँ ताजमहल होटल बनाया। उस बंदे का नाम था टाटा। आगे की स्टोरी ये है कि जिस होटल में उसको जाने से मनाही करी गई, उस होटल की राइट्स मतलब अथॉरिटी, मालकी जिसको बोलते हैं, वो टाटास के पास थी 1960 तक। ये स्टोरी पर्दे पे कब आएगी?
ये जमशेदजी टाटा की स्टोरी पर्दे पे कब आएगी कि उसने दिल पे बात ले ली, आज पूरे दुनिया में टाटा की प्रॉपर्टी है और ताजमहल होटल की पूरी चेन है, इट्स अ रेप्यूटेड रिस्पॉन्सिबल चेन। वो क्यों बनी? क्योंकि किसी इंडियन का अपमान किया गया और वो अपमान हजम करके उसने उसको रिफ्लेक्ट किया एक बड़े काम में, जो कि आज भी हम देख रहे हैं। सी, अगर आपको ये पता चल गया है ना, उसका मतलब है आपको बहुत अच्छे से पता समझ में आ गई है चीज़। व्हेन यू विल डू इट, यू विल नॉट डू दिस। ये पता चलना भी बहुत बड़ी बात है कि ये ऐसा नहीं है, मगर वी शुड नॉट बी टेकिंग इट ऑन फेस, जैसे दिखाया जा रहा है वैसा ही। हमारे पास समय कहाँ है कि जाके हम खुरेदे की 1700 में जिसका पैदा हुआ था, 1720 में जो पेशवा बना, उसकी लाइफ में आगे जाके क्या हुआ ये हमें पता ही कहाँ है। 1700 में हुआ क्या था, तो बाजीराव पैदा हुआ था, ये कितने लोगों को पता है। तो 1720 में 20 साल की उम्र में वो पेशवा बना, करेक्ट। अब वो ये मेरा बाजीराव है ऐसा कहते हैं ना, संजय सर का ये बड़ा फेमस वो है कि ये मेरा बाजीराव है। अब जब वो उनका बाजीराव है तो कॉन्वर्सेशन रुक ही जाता है वहाँ पे। और अब तो हम कंटेम्पररी की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने अमर अकबर एंथनी देखी है? अमर अकबर एंथनी मनमोहन देसाई की बहुत बड़ी हिट, सुपर हिट फिल्म है। उसमें तो ग्रेविटी का कोई लेना देना ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक महिला सोई है, उसको होश नहीं, उसके बाजू में 3 यंग लड़के सोए, आपसे आपकी एज के थोड़े से बड़े 3 लड़के सोए, तीनों के खून से, शरीर से खून निकल रहा है, मतलब लिया जा रहा है। वो खून एक थैली में जमा किया जा रहा है जो कि ऊपर लगी हुई है, और वो उसी थैली से उसी वक्त वो ब्लड जा रहा है उस औरत की बॉडी में। 3 खून यहाँ से चल रहे हैं, वहाँ जमा हो गए, वो इधर जा रहे हैं, और चारों के खून एक दूसरे से मिल रहे हैं। मज़ेदार बात क्या है, ये जो निरूपा रॉय सोई है, उसको ये पता नहीं कि ये 3 मेरे बेटे हैं। इन तीनों को पता नहीं कि ये हमारी माँ है, और उन तीनों को ये भी नहीं पता कि ये हम तीनों एक दूसरे के भाई हैं, क्योंकि एक अमर है, एक अकबर है, एक एंथनी है। अब जब मनमोहन देसाई साहब को ये बोला गया, उन्होंने कहा डोंट वरी, आई विल मेक इट विद सच अ कन्विक्शन कि लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो ग्रेविटी को ही मना ही कर दिया उन्होंने, उल्टा बह रहा है खून ऊपर, जो कि नीचे जाना चाहिए ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से तो नीचे जाना चाहिए था। एक ही साथ हो रहा है, ये तीनों के मैच भी कर रहे हैं एक दूसरे को, उसको भी। ये क्या है? ये कन्विक्शन है। और कन्विक्शन में जो पावर है ना, जो फिल्म मेकर बनाता है, मैं वही पूछा, देखो आपने अभी भी जवाब नहीं दिया मेरी बात का कि स्टोरी माने क्या, आप लोग क्या दिखा रहे हो। ये कन्विक्शन है जो आप कन्विंस हो रहे हो उससे, जनता कन्विंस हो रही है कि हाँ ये बाजीराव है, और वो उसकी यही साइड दिखाना चाह रहा है। वो तो घोड़े पे चलते चलते भाकरी खाता था, ये तो हमने फिल्म में देखा नहीं। घोड़ा चल रहा है और पूरी सेना भाकरी खा रही है, और कई सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो वो तो क्रॉस करके गया बुंदेलखंड, वहाँ के लोगों को पता नहीं चला कि बाजीराव दिल्ली पहुँच गए। तो हो सकता है सटल। देखो फिल्म का क्या है ना, फिल्म एक बहुत बड़ा टूल है। मैंने क्लास में आते ही पहली चीज़ क्या नोटिस करी कि ये जो इमेज है ना, ये सुबोध भावे है, ये लोकमान्य तिलक नहीं है। 100 साल बाद लोग क्या बोलेंगे कि तिलक ऐसे ही दिखते थे, जबकि है वो सुबोध भावे। जो तिलक स्मारक मंदिर में जो वो पेंटिंग है ना बड़ा, वो पेंटिंग करते वक्त देउस्कर पेंटर है ना, गजानन जागीरदार साहब को डमी करके खड़ा किया था इन द गेटअप एग्जैक्टली एज लोकमान्य तिलक गेटअप वाज। उनको देख के वो पेंटिंग बनाई है, तो एक रेफरेंस बन गया था। अब जैसे ये है, तो ये अगर ऐसे ही रखा हमने और 100 साल, तो ये तिलक ही हो जाएंगे, जबकि वो है एक एक्टर। इमेज का पावर क्या है? अगर मान लो हम में से हमने किसी ने भी ये फिल्म नहीं देखी है, तो हमें क्या लगेगा, यही तिलक है, लोकमान्य तिलक है ये इमेज का पावर है, उसको हमको समझना है। मैं ज़रूरी नहीं कि अभी सवाल पूछे जाए, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके दिल में दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल आए इस चीज़ को लेके। अगली बार आप जब पिक्चर फ़ोटो खींचो तो पहले एक बार सोचो कि इस इमेज का मैं क्या करने वाला हूँ या क्या करने वाली हूँ। क्या ये मेरा डेटा खाने वाला है, या मैं इसको रखूँगी तो मेरा स्टोरेज भरने वाला है, इसका मैं करने क्या वाला हूँ या करने क्या वाली हूँ, और मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो है क्या चीज़।
वो आगे भेजने लायक है कि नहीं है, वो मैं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ। ऐसी ऐसी स्टोरीज आती है। एक आती है, कोई महिला है जो सीनियर है, वो नाच रही है और लोग मुझे कहते हैं कि ये वहीदा रहमान है एट द एज ऑफ 84। अरे भाई, और क्लेम कर रहे हैं लोग कि ये वहीदा जी है। अब ऐसे कुछ लोग होंगे जो उनको बहुत करीबी से जानते हैं, तो उनको पता है कि ये वहीदा नहीं है, वहीदा जी नहीं है, मगर जो लोग नहीं जानते दे विल टेक इट कि हाँ भाई ये वहीदा जी है, 84 एज के उम्र में ये पिया तो से नैना लागेरे पे नाच कर रही है। ये बहुत मिसलीडिंग है चीज़ें। उसमें पावर देख, वही मैं कह, हमारा बात क्या था कि पावर ये है कि आप कन्विंस हो जाते हो कि हाँ ये है। इसी को अच्छे से फिल्टर करके लेना है और इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने की कोशिश बरकरार रखनी है। तो आगे बहुत है काम करने के लिए। मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, कोशिश करोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नुस्खा ये है कि एक ऑब्जेक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल आई कार्ड तुम्हारा, करेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक कैरेक्टर ले लो, कोई भी ले लो, तुम्हारी दोस्त ले लो, तुम्हारी घर का कोई सदस्य ले लो, तुम्हारी फ्रेंड ले लो, तुम्हारे ऑन द वे टू योर कॉलेज जो भी तुम आते जाते हो वो ले लो, या जिस चाय की टपरी पे चाय पीते हो वो ले लो, कोई भी ले लो जगह, वहाँ का एक कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर लो। उस कैरेक्टर के और तुम्हारे आई कार्ड के बीच में एक कनेक्शन जोड़ो और देखो कैसे फिल्म लिखते हो तुम। ये मेरी प्रैक्टिस है। इन लोगों का कोई ग्रुप बना है क्या व्हाट्सएप का, या अभी तक नहीं बना? हाँ, इफ़ आई शेयर यू समथिंग कैन दे सी? ठीक है, मैं एक तुम लोग यही एग्जांपल देता हूँ। मैं एक फिल्म शेयर करता हूँ मेरी, पांडरा चिवड़ा। हुआ एक दिन ऐसा कि क्लास में स्टूडेंट्स आए तो मैंने बोला आइडियाज़ सुनाओ। तो बोले सर अभी अभी तो डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हुई है, अब फिक्शन के आइडियाज़ कैसे सुनाए? मैंने कहा इस साल दिवाली आने वाली है, तुमको पता है ना? तो बोले सर क्या बात? मैंने कहा दिवाली तो हर साल आती है, तो दिवाली आने के बाद घर क्यों साफ़ करने लगते हो? शुरू से ही साफ़ रखो तो दिवाली पे लोड नहीं होगा। तो बात समझ में आई। बात ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको ये समझ में आया कि फ़िक्शन बनाना है तो उसके लिए तैयारी तो रखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, दो चीज़ें लेते हैं, एक कैरेक्टर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, और दोनों को जोड़ के देखते हैं कि कहानी कैसे बनती है। तो रात को मैं घर गया, दो चीज़ें क्या लेके गया था। एक कैरेक्टर था बच्चे का, विठू नाम था, उसका नाम है, और डेथ, मृत्यु। ये एक आइडिया लेवल पे मैं घर गया, रात में बैठा, लिखा, दूसरे दिन क्लास में लेके गया। सब लोग आए स्टूडेंट, बोले सर आएंगे अब देखते क्या है। मैंने कहा बैठो पढ़ाता हूँ। पढ़ा, फिल्म बन गई। क्योंकि ये एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज ये करके देखो बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को। कोई भी उठाओ ऑब्जेक्ट, आपके आसपास वाला कोई भी उठाओ, साइकिल, घड़ी, चश्मा, कुकर, प्रेशर कुकर, पैन, कुछ भी, एनीथिंग, पेन, ड्रॉवर, कबर्ड, कुछ भी, चाबी, ईयरिंग, एनीथिंग, एंड देन ट्राई टू पुट इट टू अ कैरेक्टर। उसके साथ जोड़ो, देखो कैसे स्टोरी बनती है। एग्जाम्पल देता हूँ तुम लोगों को, वो फिल्म देखना, तुमको अपने आप पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और उसको फ्लरिश कैसे होता है वो आइडिया, वो भी देखोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि एक थॉट जो है वो कैसे ग्रो करता है। वो विठू जो है उसको एक टेस्ट मिलता है नया, वो एक चीज़ खाता है, वो टेस्ट उसको इतना पसंद आ जाता है कि वो कहता है ये मुझे चाहिए। और वो एक ऐसी चीज़ खाता है जो किसी के जाने के बाद ही मिलती है। अब उसका दिमाग खराब हो गया कि मुझे वो खाना है। वो फिल्म है, मैं मैडम शेयर करता हूँ। कुछ और? परिसमाप्ति की घोषणा मैडम? हाँ, अच्छा, बाकी लोग जिनको भूख लगी है वो जा सकता है, इसको मत डांटना बाद में। हाँ, क्लास में जो सब सवाल पूछता है उसको बाहर जाके बहुत पढ़ती है, तेरे को बड़ा सवाल पूछने थे। तो जिसको भूख लगी है, लंच टाइम हो गया, दे में प्रोसीड, आई हैव नो प्रॉब्लम। करेक्ट, हाँ, डेफिनेटली सी इवेंचुअली व्हाट डू वी प्ले विथ इमोशंस ना। तुम नाटक कर रहे हो या सिनेमा कर रहे हो, तुमको बैठे हुए को रुलाना है।
या हंसाना है, एक सीन है तुमको रुलाना है उसको। राजू सर की फिल्म देखना, राजू ईरानी की, उनकी फिल्म का ग्राफ अगर स्टडी करो तो पता चल जाएगा हाउ ही प्लेज विद द इमोशंस। एक कॉमेडी सीन चल रहा है, एकदम से पीक आता है इमोशन का, वो रुला के नीचे आके फिर कॉमेडी शुरू हो जाती है। स्ट्रक्चर है एक सीन का। थिएटर में भी हम यही करते हैं। तो एज एन एक्सरसाइज 1 एक्ट लिखो, और अगर 1 एक्ट लिखने के बाद ये लगे कि यार इसकी शॉर्ट फिल्म करनी है तो जो एडॉप्टेशन करना पड़ेगा। सो एक्चुअली इफ़ यू राइट इन अ प्ले कि एक समुंदर के किनारे एक लड़का लड़की बैठे हैं, तो थिएटर में तो समुंदर हो नहीं सकता, फिल्म में हो सकता है। तो उसको यहाँ से वहाँ कन्वर्ट करने में जो चीज़ लगती है वो टेक्निकल चीज़ है जिसको स्क्रीन प्ले बोलते हैं। ये एंग्री है, गुस्से में है, तो मैं क्लोजअप लगा के दिखा सकता हूँ कि ये गुस्से में है, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। और नाटक में तुमको दूर से ही दिख रहा है तो तुमको उसको बोलवाना पड़ेगा। नाउ यू सी दैट एक्टर जो बोतल ला के रख रहा है, व्हाट इज ही डूइंग? ही इज एक्टिंग बिकॉज ही इज अ थिएटर एक्टर। वो अपने समझ के हिसाब से अभिनय कर रहा है जो कि कैमरा के लिए बहुत ज़्यादा है। ये एक बेसिक फंडामेंटल फ़र्क है। आई शब्द हाँ, ये बोला नहीं है अभी, पर मैंने सुन लिया कि क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, तुमको जाना है क्या? तुमको जाना है क्या? जाओ। सबसे बड़ा की है फॉर्मूला जो है वो है डिसिप्लिन। अगर आपको कुछ करना है तो आपको रोज़ वो करना ही पड़ेगा। लिखने के लिए लिखना ही पड़ता है। लिखने के लिए ऐसा मैंने मेरी बॉडी बनाने के लिए मैंने एक आदमी रखा है जो रोज़ व्यायाम करता है। चलेगा क्या? मुझे फिट रखने के लिए मैंने एक आदमी रखा है जो मेरे लिए एक्सरसाइज करता है। काम आएगा? नहीं आएगा ना। उससे मेरा पेट तो कम नहीं होने वाला, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मराठी के एक राइटर थे रत्नाकर मतकरी, जिनकी सबसे ज़्यादा प्ले स्टेज हुए हैं। उनका प्रैक्टिस ये था कि रोज़ सवेरे 9 बजे वो घर से निकलते थे। एक घर ये है उनका, वहीं साइड में उसी दरवाजे को लग के उनका ऑफिस था। तो वो यहाँ से निकलते, उधर चले जाते और लिखते लंच टाइम तक, और फिर टिफ़िन खाते, थोड़ा रेस्ट करते, उठते, फिर लिखते। 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस बंद, फिर घर आते। मतलब इस दरवाजे से निकलना, इधर जाना, इधर से निकल के इधर आना है, चाय वाय पीते, और फिर बाकी रिहर्सल्स और रीडिंग ये सब उनका जो होता था वो होता था। लोग आते थे घर पे मिलने, ये वो सब। तो जिस बंदे की इतने नाटक हुए तो हमको ऐसा लगता था वाह क्या डिसिप्लिन है कि इतने नाटक इनके स्टेज हुए। बट द बेस्ट पार्ट दैट ही आंसर्ड कि जितने हुए ना उसके 5 गुना ज़्यादा फाड़ के फेंके हुए हैं। जब 500 फेंके तब जाके 50 बने, क्योंकि डिसिप्लिन। अभी मैंने एक्सरसाइज दिया, देखो आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ से जाएंगे तो भूल ही जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो अटेम्प्ट करेंगे, कुछ लोग होंगे जो सक्सीड होंगे क्योंकि वो अटेम्प्ट करेंगे। तो अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू राइट, राइटर्स को तो ये बोलते ही हम लोग, इफ़ यू वांट टू राइट यू मस्ट राइट। तो ये एक्सरसाइज है, इसको करते रहना चाहिए। जैसे एक्टर्स इसके सामने खड़े, खैर एक्टर्स उसके सामने मिरर के सामने खड़े होकर परफॉर्म करते सो दैट दे कुड सी देमसेल्व्स। डांस देखो ना आप, स्टूडियोज में बड़े मिरर्स क्यों लगे रहते हैं? बिकॉज दे शुड सी देमसेल्व्स कि इफ़ माई मूवमेंट्स आर कमिंग राइट और रॉन्ग, सो दे आर देयर ओन जज। तो राइटर का यही है ना, लिखो और पढ़ो। लिखो, 2 दिन रख दो साइड में, तीसरे दिन पढ़ना, तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या लिखा है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या करेक्शन होना चाहिए। मगर अगर लिखना है तो लिखना पड़ेगा। और आप बनाओ ना फिल्में मोबाइल पे अपने, शुरू करो काम, किसने रोका है? ओके गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। ऑल्सो हमारे नया स्टूडेंट इतना इंटरेक्टिव है, दे आर क्वाइट एक्साइटेड, आई वुड से। आई एम वेरी हैप्पी। हमें बहुत मज़ा आएगा, टीचर्स को बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को पढ़ाने में। एंड today, after watching the film The Lumiere's Brother, also the Thomas Edison's kinetoscopes was telling about, ये सब सुन के मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस याद आ गया। मेरा फर्स्ट डे, मेरा ओरिएंटेशन डे ऑफ माय बैचलर्स, जो मुझे याद आ गया, बहुत अच्छा लगा। सो यस, ऑन द बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, Tilak Maharashtra Vidyapith, it is my privilege to extend a heartfelt vote of thanks to all who have contributed to making this second day of our induction program truly memorable. First and foremost, I wish to express a sincere gratitude to our esteemed guest, Dr. Milind Damble, for taking time out
for his busy schedule to share with us such an engaging, insightful and inspiring session on the power of storytelling in digital media. Sir, your talk has given our student not only valuable knowledge but also a deeper appreciation for the art and craft on storytelling in the modern media landscape. Your personal experience and expertise have truly enriched today's program. And a special thank you to our respected Dr. Dheeraj Singh sir to gracing the occasion, addressing our student with his words of wisdom and felicitating our guest with such a word. We are equally grateful to our respected faculty members and technical support team whose seamless coordination and behind the scene effort ensured that today's event went off smoothly. A heartfelt thank to all of our students for your enthusiastic participation, active listening and curiosity. You are the reason we create program like this. Your engagement make such event truly meaningful. Lastly, I would like to acknowledge our department leadership for their constant support in conceptualizing and executing this program successfully. Once again, thank you, Dr. Damle, for inspiring us today. We hope this is the beginning of many more introduction in future. With that, I officially conclude this session. Now I would like to request all of the students for a photograph with our guest and our faculty members. And before that, please fill the feedback form. And also we will meet after the lunch, 2 p.m. There will be a bus on the campus. Now after that, we have a Kesari Praise Visit session with, there will be our Nayan sir. He will guide you for the Kesari Praise Visit. So it is compulsory for everybody. मैं देखी हूँ कुछ लोग मुझे अपना नाम दे रहे थे कि मुझे जाना है, इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीबडी. ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाम नहीं दे रहे तो दे आर नॉट अलाउड. सो आई होप यू विल एंजॉय एंड बेस्ट ऑफ लक.